میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، السلام علیکم. جی والسلام علیکم اتباع اللہ. خیریت سے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. میں ابھی آ رہا ہوں، 10 منٹ ابھی آ رہا ہوں. ٹھیک ہے 1 منٹ، ابھی 10 منٹ بھی آ رہا ہوں. ہیلو، ارے آ رہا ہوں، رکو 1 منٹ بھی آ رہا ہوں. ہیلو جی جی. جی تو 1 سیکنڈ ذرا میں وہ لگا لوں، ذرا 1 سیکنڈ. جی جی لگا لیجیے. اشفاق رضا صاحب لائن پہ ہیں. جی حضرت آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ آ رہی ہے. جی حضرت ٹھیک. آپ کو آ رہی نا؟ جی الحمدللہ حضرت. جی یہ آ گئے حضرت فیضان صاحب. اشفاق صاحب آ گئے؟ جی جی بالکل حاضر ہیں. حاضر ہیں جی حضرت. اور خیریت ہے؟ جی الحمدللہ رب العالمین، اللہ اور رسول کا کرم. چلیے، تو آپ کو تو بتا دیا ہوگا، عبداللہ صاحب نے آج ان کی کال بھی آئی تھی میرے پاس، ڈے میں کال آئی تھی. ان سے بات نہیں ہو پائے گی. بتائیں آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ جی مجھے ان سے بات ہوئی تھی، وہ آپ کی طرف سے بات کر رہے تھے، تو میں نے ان سے بتا دیا تھا. دیکھیے جی آپ کی طرف سے بات کر رہے تھے، اور میں نے ان سے بتا دیا تھا کہ دیکھیے جیسے کہ آپ کے مولوی اشفاق صاحب نے پہلے جو میرا چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہوئے جو انہوں نے کہا تھا کہ میں حفظ الایمان کی جو ہے مکمل عبارت، یعنی وہ جو 2-3 صفحے ہیں وہ پڑھ کر کے دکھاؤں گا، اور سوال اور جواب مکمل پڑھ کر کے دکھاؤں گا. نہیں ایک منٹ رک جائیے آپ تھوڑی دیر. آپ کا چیلنج یہ تھا کہ بریلی شریف کے تمام علماء کو میرا چیلنج ہے جن کا حفظ الایمان پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 12 سے لے کر صفحہ نمبر 14 تک عبارت پڑھ کر بتائیں. جی جی یہ چیلنج ہم نے آپ کا ایکسپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ 12 سے 14 تک پڑھ کے دکھائیں گے؟ بالکل پڑھ کر دکھا دیں گے، کوئی حرج نہیں. تو پی ڈی ایف اب آپ سنیں، اگر آپ پی ڈی ایف اوپن کریں گے تو پیج نمبر 12 سے وہ جواب شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور پیج نمبر پی ڈی ایف نہیں، ہمارے پاس ہارڈ کاپی ہے نا، ہارڈ کاپی میں پڑھو. بھائی آپ جواب پڑھیں نا. اب آپ خواہ کی باتوں کو الجھائیں تو اس سے کوئی فائدہ. اچھا آپ کو جواب سننا ہے تو جواب دیجیے نا. پھر آپ نے 12 کا کیوں بولنا تھا؟ آپ بولتے کہ جواب سے پڑھیے. بھائی جواب پی ڈی ایف اگر فائل آپ کھولیں گے تو صفحہ نمبر 12 پر جواب شروع ہے. ٹھیک ہے، پی ڈی ایف فائل کے اندر بھی صفحہ نمبر 12 پر جواب نہیں ہے. سنیے ایک منٹ میں بتا رہا ہوں. سنیے، ارے یار میں فوٹو بھیج دیتا ہوں آپ کے پاس اگر آپ چاہیں تو. آپ ایکچولی میرا واٹس ایپ ابھی چل نہیں رہا ہے، پرابلم. اچھا واٹس ایپ آپ کا چل نہیں رہا ہے. آپ میرے کو ہاں تو نہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا پی ڈی ایف جو آپ 12 کا بول رہے ہیں. صفحہ نمبر 12 پر بھی پی ڈی ایف میں بھی یہ بات نہیں ہے جیسے جواب ہوا ہوگا یا 13 پر ہوگا. 13 پر بھی نہیں ہے، 12 سے 14 کے بیچ میں ہے. اچھا آپ کے پاس حفظ الایمان ہے؟ جی پی ڈی ایف فائل میرے پاس موجود ہے. اچھا پی ڈی ایف آپ کے پاس موجود ہے؟ پی ڈی ایف موجود ہے آپ کے پاس. تو پی ڈی ایف میں 12 پر کیا ہے آپ کے یہاں؟ بہرحال آپ کو جو سوال قائم کیا ہے، جو معاشرے تھانوی صاحب سے سوال پوچھا گیا تھا، اس سوال کو آپ نے پڑھنا ہے. سنیے دیکھیے، نہیں صفحہ نمبر 12 پر سوال نہیں ہے. صاحب آج وقت بات سن لیجیے. اگر آپ کو وقت ضائع کرنا ہے اور بحث و مباحثہ نہیں وقت ضائع کہاں کر رہے ہیں بھائی، بات ہی کر رہے ہیں آپ سے. آپ ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ چھوٹی سی میری آپ کا جو چیلنج ہم نے ایکسپٹ کیا، ہم پورا چیلنج قبول کر رہے ہیں، پھر آپ ادھر ادھر کر رہے ہیں. یہ بھاگنے کا لفظ آپ ایک طرف رکھ کر کے اور ذرا ایک عالمانہ گفتگو جاہلانہ گفتگو نہ کریں آپ. نہیں جاہلانہ گفتگو نہیں، آپ ایک عالم ہیں تو ایک عالم کی طرح بات کریں آپ. تو اب بات سے مکر رہے ہیں نا. ہم نے جو چیلنج کیا ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا، ہم اس چیلنج پر بولنے کے لیے تیار ہے. پھر آپ نے دوسری بات یہ کہی کہ مطلب جو ہے جواب سنائیے تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. آپ جواب پڑھ کے سنائیں اور جو سوال ہے وہ سوال پڑھ کر کے سنا دیجیے. پہلے آپ سوال. اچھا جواب بھی سنائیں اور سوال بھی پڑھیں. اچھا سوال بھی سنائیں جواب بھی سنائیں. جی اردو عبارت ہے. نہیں نا کوئی دقت نہیں ہے. نہیں عربی بھی پڑھ لیں گے. نہیں عربی بھی پڑھ لیں گے، کوئی دقت نہیں ہے. آپ وہ سوال پڑھ دیجیے. سوال پڑھ دیجیے. عربی بھی پڑھ لیں گے. آپ عربی کا ٹینشن نہ لیجیے، آپ ہمارا ٹینشن مت لیجیے. الحمدللہ آپ جو بولیں گے وہ پڑھ دیں گے ہم. چلیے ٹھیک ہے، تو آپ سوال پڑھ دیجیے. چلیے سوال کیا ہے؟ پڑھیے. ہاں آپ اپنے فون میں پی ڈی ایف فائل کھول لیجیے.
नहीं, PDF में मेरे पास हार्ड कॉपी है, मैंने निकाल लिया है हार्ड कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी। हाँ, पहले सवाल पढ़े, जवाब दें, क्या करें? पहले सवाल पढ़ के सवाल की वजाहत कर दीजिए कि सवाल में सवाल किस चीज पर किया गया, किस उन्वान पर सवाल किया गया है। चलिए, तीसरा सवाल है, सुन लीजिए। तीसरा सवाल है, इल्म गैब की दो किस्में हैं, बिज़ात इस माना करके आलिमुल गैब खुदा ताला के सिवा कोई नहीं हो सकता, और बवासिता इस माना करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे। ज़ैद का ये इस्तदलाल और अकीदा व अमल कैसा है? ठीक है, सवाल है, जवाब आ जाइए। जवाब है थोड़ी सी। हाँ, बोलिए आप जी, फरमाइए। अब आप मुझे बताएं कि साइल कौन है इसके अंदर, इसमें साहिल कौन है? साहिल कौन है? सवाल किया है, करने वाला कौन है? जी, सवाल करने वाले का यहाँ नाम नहीं दिया है। सवाल करने वाले का नाम जैद है, उसमें लिखा हुआ है। हाँ, जैद नाम नहीं होता यार, जैद तो मतलब एक आम आदमी। यार जैद आप कुछ भी बात कर रहे, बताएंगे आप आलिम है ना। बात सुनिए, जैद उसके अंदर आप पढ़ेंगे, जो अगर आप पढ़ेंगे जैद नाम उसने 3 सवाल किए हैं, ठीक है, उसमें तीसरा सवाल जैद जो है, जैद अब सुने, देखिए बातों को एक आवाम की समझ में जैद किसको कहते हैं? जैद नाम होता है, बताए आप आलिम है? क्या होता है? जैद बिन साबित जैद नाम होता है, साहबी का नाम नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पर मतलब वही मतलब है, यहाँ वही मतलब है, यहाँ वही मतलब है। चलिए बहरहाल, आपसे लोग मसला पूछते हैं, चलिए बोलिए आगे बोलिए। जैद नामी शख्स ने जैद नामी सवाल किया, उसके जरिए से सवाल हुआ कि जैद नामी शख्स ये कहता है कि इल्म गैब की 2 किस्में हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक है ना, नहीं बोलिए ना। 2 किस्में हैं। अरे हमने पढ़ दिया यार, बोलिए। मैं भाई, जो सुनने वाले हैं उनको भी तो समझ में आना है ना, सुनाइए, उनको भी तो समझ में आना चाहिए। बिज़ात बिल्कुल सुनाइए। आलिमुल गैब कौन है? इस माना से क्या लिखा है मोहम्मद किताब में, बताइए। बाहर खड़ो के बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं, बाहर मत खड़े रहिए, आप किताब खोलिए, किताब खोल कर बात करिए, बाहर मत रहिए, आ गई आप। 1 सेकंड वेट, किताब खोलिए, किताब में जो लिखा वो पढ़िए। 1 सेकंड वेट, में किताब ओपन कर लूँ सर। हाँ, किताब ओपन कर, बाहर चले जाते हैं आप, गलत बात नहीं। हजरत हमें नहीं मालूम था कि जैद नामी शख्स था कोई। 1 सेकंड जरा मैं ओपन कर लूँ, क्या नाम है? राहिल खान खामोश रह जाओ, बात करने दो, गुफ्तगू हो रही है आपसे, आपसे नहीं हो रही। ये कौन है भाई? राहिल खान खामोश रहो। ये आपके अब्बू जान है। ये ओपन हो गई। ये कौन बदतमीज है जिसको आपने लाइन पे ले रखा है? आप बात ना करें, अशफाक रजा से बात हो रही है, बस वही काम। चलिए, खलते मबस के लिए एक आदमी रखा गया है, खामोश रहिए आप बीच में कहीं से आपको इनवाइट नहीं किया गया था, आप कैसे आए? रुक जाइए, शर्त के अंदर ये नहीं था कि कोई आपकी तरफ से आदमी आएगा, सब्र करिए। शर्त में नहीं था कि आपकी तरफ से कोई आदमी आएगा, शर्त में नहीं था कि आपकी तरफ से कोई आदमी नहीं आएगा। इसको चुप कराइए, इसको चुप कराइए, ये बोलेगा नहीं बीच में, ये बोलेगा नहीं बीच में। ये कौन जाहिल आदमी बोल रहा था बीच में? ये जो जाहिल बोला था, जाहिल से कहिए जरा मुंह बंद करके रखे। अभी तो तमीज के दायरे में हूँ, लेकिन अगर अब ये बोला तो दायरे से बाहर चला जाऊंगा। तमीज के दायरे बात करनी है तो करो, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। हजरत ये खलते मबस के लिए लाया है इसको। राहिल, अगर तमीज के दायरे बात करो, खामोश रह जा। चल चुप रहे तो उसको खामोश करिए ना, उससे बुलवा क्यों रहे हैं? खामोश हो जाए, उसको खामोश करिए, बात करने दे बस, ठीक है? मैं बात कर रहा हूँ ना, सुनिए जी। बिल्कुल अशफाक साहब, इनको बोलिए। मैं बात कर रहा हूँ, बताइए। हाँ बोलिए जी। मैंने किताब खोल ली है जी। तो जैद के नजदीक क्या है? इल्म गैब 2 किस्में हैं, ठीक है? सवाल आया है जैद नामी शख्स की तरफ से, वो कहता है कि बिज़ात इस माना से आलिमुल गैब खुदा ताला। इस माना क्या लिखा है? फिर से पढ़िए, एक मिनट फैजान साहब, फिर से पढ़िए। इस माना जी, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। बिज़ात इस माना से आलिमुल गैब, से कहाँ है? वहाँ से नहीं है, वहाँ से नहीं है, वहाँ से नहीं है, वहाँ आप किताब पढ़ रहे हैं, से नहीं है वहाँ, से पढ़िए भाई। से कहाँ से लाए आप? आके खोल के जरा देखें, ठीक है? आके से नहीं है वहाँ, और से नहीं है वहाँ, करने की नीयत से मसले को हल से नहीं है वहाँ। आप गलत पढ़ रहे हैं ना, आप किताब गलत पढ़ रहे हैं। आप इस माना कर है वहाँ लिखा है, इस माना कर PDF फाइल को। अच्छा, कर में और इसमें क्या फर्क आ गया? वो फर्क से मतलब नहीं, जो लिखा है वो पढ़िए, जो लिखा है वो पढ़िए, जो लिखा है वो पढ़िए। इस माना कर, चलिए आपकी मान, इस माना कर आलिमुल गैब खुदा ताला के सिवा और कोई नहीं हो सकता, ठीक है? और का लफ्ज भी नहीं है इसमें, क्या है इस पर? और का लफ्ज भी नहीं है इसमें और का लफ्ज भी नहीं है। कर रहे हैं आप खुलासे कलाम पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं? इसमें और का लफ्ज भी नहीं है, आप अपनी तरफ से और बढ़ा रहे हैं।
हो सकता जो किताब खुली है उसमें लफ्ज़ और मौजूद है, ठीक है। अच्छा, आप बात को अगर हल करना चाहते हैं तो मैं फिर कहूँगा कि आलिमाना गुफ्तगू करें। हाल ही तो कर रहे हैं यार, तुम किधर तो चल रहे हो आप। बिज़ात इस माना कर आलिमुल गैब अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं हो सकता। इस पर आपका अकीदा क्या है? आपका नहीं, हमारा अकीदा क्यों पूछ रहे हैं आप? आपसे बात कर रहे हैं हिफ्ज़ुल ईमान की बोली पर, उस पर बात करिए ना। अभी सुने, ये इस पर एतराज है कि आपको, अरे इस पर एतराज है कि आपको थानवी ने जो गंदी और फोड़ बोली है, थानवी ने जो गंदी और फोड़ बोली रसूलुल्लाह की शान में बोली है, उस पर बात हो रही है, उस पर बात करिए। तमीज के दायरे में अगर बात करनी है तो बात करना, वरना यहाँ से दफा हो जाना। तमीज, बिल्कुल तमीज के दायरे में ही बात कर रहा हूँ मैं इतनी देर से, लेकिन आप बिला वजह की गुफ्तगू कर रहे हैं। आप आइए जवाब पर, शान में गुस्ताखी, आप जवाब पर आइए, आप जवाब पर आइए, ठीक है, आप जवाब पर आइए, आप जवाब पर आइए, भागिए मत, भागिए मत, जवाब पर आइए, भागिए मत। मुझे मालूम था ऐसे भागोगे तुम। भागने दूंगा आज मैं तुम्हें, भाग तो रहे हो, बोलो, ठीक है ना। अभी सुनो, क्यों उलझाओ इतना? अवाम को ना उलझाओ, अवाम को ना। अरे कौन उलझा रहा है? अरे कौन उलझा रहा है बताएं? तो बिज़ात, चलिए आगे बढ़ते हैं, इबादत की बात करते हैं। बिज़ात पूरा सवाल पढ़ने के बाद जवाब पर जो हमारा एतराज है उस एतराज पर बात करिए। मैंने सवाल पढ़ दिया आपके कहने पर, आपको बात नहीं करनी, आपको आपके सवाल पर, मैं आपके कहने पर मैंने सवाल पढ़ दिया। आपने कहा सवाल पढ़ो, मैंने सवाल फौरन पढ़ दिया। आप जवाब पर आइए, बयान करें आप जैद का अकीदा। आप जवाब पर आइए, आप जवाब पर आइए। जवाब पर एतराज है हमारा। जब तक सवाल, हमारा एतराज सवाल पर नहीं है, हमारा एतराज जवाब पर है। हमारे आपकी जो बोली है, गंदी बोली जो लिखी है, आपके मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने जो गंदी बोली लिखी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में, उस पर हमारा एतराज है। समझे आप? उसी पर बताऊंगा, उसी पर। हाँ, अब हमने बहुत अदब से बोला है आपको। आपके मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने जो गंदी बोली हमारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक से लिखी है, उसके ताल्लुक से बोल रहे हैं। मुजद्दिद ने लगाया है उसको, अभी मुंह हम साबित करेंगे ना, अभी साबित करेंगे हम कि क्या लिखा है। बिल्कुल, चलिए बोलिए, तमीज से अब और क्या तमीज करूँ, अब और क्या तमीज करूँ? मौलाना अशरफ अली थानवी साहब बोल रहा हूँ, और क्या तमीज करूँ? सुने, अब आप ये बताइए, सवाल के अंदर मौलाना शफी थानवी साहब से सवाल किया गया, सवाल की वजाहत कर दें आप आवाम के सामने। चलिए वजाहत कर दीजिए। सवाल हुआ है, सवाल का जवाब दिया है, सवाल की वजाहत करिए ना आप, उस सवाल की वजाहत करिए ताकि आवाम को समझ में आए। फिर पता, अरे भाई जैद ने सवाल किया है कि इल्म गैब की दो किस्में हैं, बिज़ात इस माना कर के आलिमुल गैब खुदा ताला के सिवा कोई नहीं हो सकता, और बवास्ता इस माना कर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे। जैद का ये इस्तदलाल और अकीदा व अमल कैसा है, पूरा सवाल है। अब इस पूरे सवाल का जवाब थानवी साहब ने क्या दिया है? हाँ जी, थानवी साहब ने जवाब क्या दिया? जवाब पर आइए। अरे भाई चलिए जवाब पर आइए। सवाल की वजाहत कर दीजिए ताकि अवाम की, सवाल की क्या वजाहत करूं? क्लियर तो लिखा हुआ है, क्या उर्दू नहीं आती आपको? मैं नहीं, ये आपकी अवाम, आपकी जाहिल अवाम जब तक गुमराह पड़ी है। इल्म गैब की दो किस्में हैं, ये एक शख्स है जिसका ये अकीदा है कि इल्म गैब की दो किस्में हैं, बिज़ात इस माना कर के आलिमुल गैब। एक मिनट यार, ये सुनिए, ये अकीदा मौलाना शफी थानवी साहब का है नहीं है, ये बताइए। अरे मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने तो जवाब इस पर ये दिया है कि इल्म गैब की नफी कर दी ना उन्होंने। तो सवाल में अकीदा जैद का बयान किया जा रहा है ना। जैद का है, बिल्कुल जैद का है। तो जी बिल्कुल जैद का अकीदा है, हमारा अकीदा ठीक है, ठीक है। तो जवाब जो है वो जैद के अकीदे पर दिया गया है ना। इसका मतलब क्या सवाल जैद के अकीदे पर क्या जवाब दिया गया? अकीदे पर जवाब दिया गया है ना। हाँ, तो क्या जवाब दिया गया? जवाब पर आइए। चलिए अब मैं, चलिए आप वजाहत नहीं कर रहे तो मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ थोड़ी सी। अब आप 1-2 मिनट के लिए अगर खामोश रहेंगे तो मैं वजाहत कर देता हूँ सवाल की। बताएं, आपसे वजाहत नहीं, सवाल की वजाहत करेंगे, जवाब पर एतराज है, सवाल की वजाहत चल रही। चलिए अरे अभी बताइए ना, बताइए। ठीक है, तो सामने मैं सवाल की वजाहत करने जा रहा हूँ जिसका आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सवाल के अंदर जो सवाल किया गया है वो आलिमुल गैब पर किया गया है या हुजूर के इल्म गैब पर किया गया है। ये दोनों चीजें एक अलग अलग है। हुजूर का इल्म गैब अलग है और हुजूर आलिमुल गैब कहना एक अलग है। आलिमुल गैब क्या आप हुजूर को कहते हैं अशफाक साहब? बताइए, 2 मिनट बोलना है आपको, बोलिए, आप बोलिए, 2 मिनट बोलिए। जवाब दे देंगे तो आवाम की समझ में आ नहीं, आप 2 मिनट बोलिए, आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। आप लोगों का भी यही अकीदा है कि आप लोग हुजूर को आलिमुल गैब नहीं, आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब नहीं कहते, ठीक है। तो जैद उसका अकीदा है कि बिज़ात इस माना से आलिमुल गैब अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं हो सकता, ये हम सब का अकीदा है। और बिल वास्ता यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपने वही के जरिए से जो गैब का इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया है, बिल वास्ता इस माना से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे। यानी जैद जो
वही के जरिए जो इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, उसकी वजह से भी, यानी बाज मुतलक उलूम गैबिया की वजह से भी ज़ैद का अकीदा है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहता है। तो सवाल ये है कि ज़ैद का अकीदा यानी बाज मुतलक इल्म गैबिया होने की वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहना ये सही है या नहीं है? ठीक है, ठीक है, हो गया तो हो गया, आगे बढ़िए। चलिए अब बताओ क्या जवाब दिया था अलवी साहब ने इसमें। अब सुनिए, अब इसमें जवाब तो दीजिए यार, क्यों भाई? हुआ है इसमें सवाल इल्म गैब पर हुआ है या आलिमुल गैब पर हुआ है? अब इतना बता दीजिए आप। ये जवाब दीजिए, जवाब क्या दिया था आदमी ने, बताइए। सवाल आप अभी वजाहत कर रहा हूँ मैं। आलिम है तो आलिमान गुफ्तगू करें, ये इस तरीके से अरे भाई ना करें। अरे भैया तुमने सवाल 3-4 बार पढ़ लिया, 3-4 बार सवाल पढ़ चुके ना तुम, अब जवाब पर आ जाओ जरा। आप और आपके उलमा की समझ में आज तक सवाल ही नहीं आया ना, इसलिए मुझे 4 बार पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा चलो सवाल समझा दो, क्या सवाल है? कि सवाल इल्म गैब पर हुआ है या आलिमुल गैब पर हुआ है? अबे क्या दिए यार, चलिए सवाल जवाब बताइए। चलिए हुआ है, चले सवाल आलिमुल गैब पर उस बंदे ने कर लिया, अब थानवी साहब जवाब क्या दे तो बताइए। चलिए ठीक है, सवाल आलिमुल गैब पर है, इल्म गैब पर नहीं है। ठीक है ठीक है ना? चलिए ठीक, बोलिए आगे बोलिए। तो सामने इन्होंने इस बात को मान लिया कि चलो इन्होंने सच को कबूल कर लिया, आज तक इन्हें सच कबूल नहीं करा था। अच्छी बात है कि इन्होंने सच कबूल कर लिया कि सवाल आलिमुल गैब कहे जाने पर है, इल्म गैब पर नहीं है। तो अब सबसे बड़ी बात पॉइंट की ये है कि जब सवाल ही इल्म गैब पर नहीं है तो हुजूर के इल्म को तशबीह देने वाला जो इल्जाम इन्होंने लगाया है वो सबसे पहले यहाँ से बातिल होता है, सबसे पहले यहाँ से बातिल। अच्छा बोली, अच्छा जवाब पर आए, जवाब पर आ जाए। अब आप जवाब पर, चलिए जवाब पर आइए। चलिए जी पढ़ूं, मैं पढ़ूं? एक सेकंड जरा, मैं पढ़ूं, निकालिए। एक सेकंड जरा वो करना जरा। अच्छा जी 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 यार, एक तो मेरे पास एयरफोन नहीं है अभी। ओहो, बड़ी परेशानी है। आप कभी बाहर भी रहते हैं, एयरफोन भी नहीं रहता है, बड़ी परेशानी है आपकी, क्या करें? भाई जी आप जवाब पढ़ना शुरू कर दीजिए, जैसे तो आप जवाब सवाल सोम पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा, जवाल सोम मतलब हाँ, मतलब गैब से मुराद इत्तलाक़ात शरइया में वही गैब है जिस पर कोई दलील कायम न हो और उसके इदराक के लिए कोई बात। जरा धीरे धीरे पढ़िए ताकि आवाम की अच्छी तरह समझ में आ जाए। आज इस बातों को बिल्कुल आराम से। मुतलक गैब से मुराद इत्तलाक़ात शरइया में वही गैब है जिस पर कोई दलील कायम न हो और उसके इदराक के लिए कोई वास्ता और सबील ना हो। इसी बिना पर ला यालम। थोड़ी सी इसकी, अरे रुकिए यार, देखिए एक चीज पर रुकिए मत, पूरी बात कर लीजिए ना भाई, रुकिए है ना, पूरा जवाब नहीं, पूरा जवाब सुनिए, पूरा जवाब सुनिए, चलिए इससे कोई फायदा। आप पूरा जवाब सुनिए, नहीं थानवी की बात मैं क्यों समझाऊंगा यार? थानवी बोला है उसकी बात मैं क्यों समझाऊंगा? मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ क्या? यानी जब आपकी समझ में नहीं आई तो आपने यूं ही इल्जाम लगा दिया। नहीं तो अशरफ अली थानवी ने जो जवाब दिया है वो अपने अकीदे के मुताबिक दिया, तो उसका जवाब का मैं क्यों समझाऊंगा? आपको समझाना आप समझाते रहिएगा, आपको जब समझाना आप समझाते रहिएगा। आई है नहीं आई है, आपको जब समझाना होगा आप समझाते रहिएगा। हमारा जो एतराज है उस एतराज पर आप हमें समझाइए ना। आप इधर उधर क्यों भाग रहे हैं इतनी देर से? 20 मिनट हो गए, यहाँ वहाँ भागते चले जा रहे हैं। भाग रहा हूँ मैं, कहीं नहीं भाग तो रहे, लगातार भाग रहे हैं यार। जब सुनेंगे लोग तो क्या कहेंगे? थू करेंगे कि यार देखो थानवी का चेला आया और भाग गया। जी वो तो पता लग रहा है ना कि आपकी सलाहियत इतनी है, आपसे उर्दू इबारत की वजाहत तक नहीं हो रही है। वजाहत मैं क्यों करूंगा? थानवी की बोलिए मैं क्यों वजाहत करूंगा? अरे मैं इमाम अहमद रजा की बोलियां ला करके तुम्हारे सामने रखूंगा और कहूंगा वजाहत करो इसकी। ये बेवकूफी वाली बात है ना भाई। वो मेरे उलमा है, मेरा आलिम है, मेरे आलिम की वजाहत मैं करूंगा। तुम्हारा आलिम है, तुम्हारे आलिम की वजाहत तुम करोगे, मैं तुम्हारे आलिम की वजाहत क्यों करता बैठा रहूंगा भाई? जी अभी क्या तुम करोगे वजाहत मैं करूंगा, गुस्ताखी तुम करोगे वजाहत मैं करूंगा, है चोरी तुम करोगे वजाहत मैं करूंगा, जिना तुम करोगे वजाहत मैं करूंगा, है लिखोगे तुम वजाहत मैं करूंगा। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बहुत अच्छी बात, वजाहत तुम करोगे ना। 2 सेकंड तो सामीन अभी बहुत अच्छी बात कही। तुम वजाहत पेश करो, तुमसे पूछ तो रहा हूँ सर, तुम जवाब में मुझसे कह रहे हो वजाहत पेश करो। अजीब आदमी हो यार,
बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात आपने कही है सामईन। वजाहत आप पेश करिए, हमारा एतराज है, उस एतराज पर वजाहत आप पेश करिए। हमारी होगी वजाहत, हमारी होगी, इस बात को आप मान। हाँ, वजाहत आप पेश करेंगे। अगर एतराज हम करेंगे, हम अगर आपको कहेंगे कि आप चोर है तो आप वजाहत पेश करेंगे कि आप चोर नहीं है। अगर हम आपको कहेंगे कि आप जानी है तो आप वजाहत पेश करेंगे कि आप जानी नहीं है। हम अगर आपको कहेंगे कि आप लूटी है तो आप वजाहत पेश करेंगे कि आप लूटी नहीं है। हम अगर आपको कहेंगे कि आप झूठे हैं तो आप वजाहत पेश करेंगे कि हम झूठे नहीं है। समझे? वजाहत पेश करना आपकी जिम्मेदारी होगी, ना कि हमारी। हम क्यों देंगे आपकी जिम्मेदारी को? अजीब बात करते हैं यार इतनी देर से, मतलब जो तो बात इधर उधर घुमा रहे हैं। बात कहीं नहीं घूम रही है, बात अभी इबारत पर ही चल रही है। आपको कहाँ इबारत पर? अभी तक तो आप इबारत पर ही नहीं आए हैं। आप सवाल में घूमे पहले। जैद, आपको यही नहीं मालूम कि जैद किसको कहते हैं, अम्र बकर किसको कहते हैं। आप कहते हैं जैद ने पूछा सवाल, जैद नाम है आपके नजदीक, आपका ये हाल है। कहाँ से पढ़े हुए पता नहीं। हजरत जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी। अरे तो वो हजरत जैद ने पूछा था सवाल थानवी से। जैद नाम नहीं होता। तो हजरत जैद ने पूछा सवाल थानवी से, ये जैद कौन है? ये वही जैद है। ये जैद वो है जो सवाल में होता है। अरे ये जो सवाल में जैद बगैर अमर होते हैं, ये वो है, ये वो जैद नहीं है। जैद नाम नहीं है उसका। अरे है नाम है ना। कहाँ का रहने वाला है पता भी देना था फिर उसका, क्योंकि जब जैद सवाल पूछता है तो पता भी देता है, जब नाम पूछता है तो जगह भी बताता है और तारीख भी बताता है। तो ये जैद कौन था? ये अपने ख्याल के अंदर इसने एक जैद को तैयार किया और बिला वजह में सवाल पैदा किया और बिला वजह में रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी वाला जुमला किया। और आप कहते वजाहत पेश करो, बात करते हैं यार। चलिए सुनिए जवाब, सुनिए जवाब, सुनिए जवाब, सुनिए, कान खोल कर सुनिएगा आराम से जी। और आप भी आराम से पढ़िएगा ताकि खुद की भी बिल्कुल आराम से सुनिए, आराम से सुनिए। ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दि गैब इल्लल्लाह और वलौ कुंतु आलमुल गैब। अरे भाई आराम से पढ़िए। वलौ कुंतु अअलमुल गैब। हाँ, वलौ कुंतु आलमुल गैब। कुरान का तलफ़्फ़ुज़। हाँ, गैब जब आप पढ़ोगे तो गैबा यहाँ पर रुक रहे हो आपकी, मतलब ये तो चल रहे हो, क्या कर रहे हो? तो गैब पढ़ोगे, गैबा पढ़ोगे। तो यहाँ कितनी आयत लिखी? जितनी लिखी उतनी पढ़ूंगा ना, कि ज्यादा पढ़ दूं थानवी की तरफ से? हाँ, हाफिज नहीं है क्या? हाफिज कितनी लिखी है इन्होंने? कितनी लिखी है इन्होंने? कितनी लिखी है वो बताओ। अरे भाई मैं जवाब पढ़ रहा हूँ तो जितना लिखा उतना पढ़ूंगा ना। अरे जितनी उन्होंने जवाब लिखा है, अरे भाई जितना उन्होंने लिखा है उतना जवाब पढ़ूंगा कि उससे ज्यादा पढ़ूंगा? पढ़िए। हाँ चलिए। वगैरह फरमाया गया है। और जो इल्म बवास्ता हो उस पर गैब का इतलाक मोहताज करीना है, तो बिला करीना मखलूक पर इल्म गैब का इतलाक मोहम शिरक होने की वजह से ममनू व नाजायज होगा। कुरान मजीद में लफ्ज राइना की ममानियत। अरे यार वो देखो, समझाओ मत, मैं चल रहा हूँ ना, अभी आगे चलते जाओ। जवाब सुना रहा हूँ आपको, जवाब सुना रहा हूँ आपको, जवाब सुना रहा हूँ। जवाब नहीं, मुझे इस पर एतराज, मुझे इसकी बोली पर एतराज नहीं है। मुझे जिस बोली पर एतराज मैं वहाँ आ रहा हूँ, ठीक है? मुझे जिस बोली पर एतराज है मैं वहाँ आ रहा हूँ। मुझे जिस बोली पर एतराज है मैं वहाँ आऊंगा। मुझे जिस बोली पर एतराज होगा मैं वो बोलूंगा, ना कि पूरी किताब पढ़कर सुनाऊंगा आपको, समझे? मुझे जिस बोली पर एतराज होगा वो बोली बताऊंगा, उस बोली की वजाहत आप करेंगे। मैं पूरी किताब पढ़कर अगर रात भर सुनाता रहूंगा तो आपको तो हिफ्जुल ईमान हिफ्ज हो जाएगी। चेक होते हुए क्या ये इबारतों में क्या करना कब छोड़ेंगे आप? ये किसने चोरी किया? कब छोड़ेंगे आप? अबे पूरी तो पढ़ रहा हूँ यार, एक एक लफ्ज पढ़ रहा हूँ ना। तो भाई वजाहत करिए ना इसकी, आपको खुद समझ। वजाहत मैं क्यों करूंगा? अभी तो बोला चोरी आप करोगे, वजाहत मैं करूंगा। जवाब क्या बेवकूफ आदमी हो यार। मतलब चोरी तुम करोगे, वजाहत मैं करूंगा। वो पेज का है या अबे वजाहत, अबे चोरी तुम करोगे, वजाहत मैं करूंगा। चोरी काम तो सीधा ठोक के कह रहे हैं, पढ़ के दिखा दो पूरी इबारत वजाहत के साथ। तो चोरी तुम है तो पढ़ के तो दिखा रहा हूँ, वजाहत बीच में क्यों कूद रहे हो? क्यों डर रहे हो तुम? अरे पढ़ करके तो दिखा रहा हूँ, वजाहत क्यों कूद रहे हो बीच में? पढ़कर तो दिखा रहा हूँ। ताबीर की उर्दू इबारत तक नहीं पढ़ सकते ये। अरे पढ़ कर तो दिखा रहा हूँ, वजाहत क्यों सीख रहा हूँ उसके अंदर? करो ना भाई वजाहत क्यों? वजाहत मैं क्यों दूंगा? अभी थोड़ी देर पहले फैजान तुमसे मेरी बात हुई, मैंने कहा चोरी तुम करो, वजाहत मैं क्यों करूंगा? अरे चोरी क्यों कर रहे हैं? हमारी किताब आपके तो चोरी तुमने किया ना, वजाहत तुम करोगे ना भाई। वजाहत तुम करो ना, वजाहत तुम करो। चलो वजाहत करते जाओ। चलो मैं पढ़ता जाता हूँ, तुम वजाहत करते जाओ। चलो मैं पढ़ता जा रहा हूँ, चलो वजाहत करते जाओ। मैं वजाहत नहीं कर सकता। मैं क्यों बोलूँ? मैं तुम्हारी वजाहत क्यों करूंगा? मैं तुम्हारी वजाहत क्यों करूंगा? मैं तुम्हारी वजाहत क्यों करूंगा? अरे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की किताबें मैं तुम्हारे सामने रखूंगा और कहूंगा इसकी वजाहत करो, तो वजाहत तुम करोगे? बिल्कुल करेंगे हम। क्या बेवकूफी वाली बात है?
बेवकूफाना बात है तुम्हारी ये। अरे मैं कह रहा हूँ कोई, अरे जब आला हजरत की किताब अगर आपके सामने में रखूंगा, आला हजरत की किताब में आपके सामने रखूंगा और आपसे कहूंगा कि आप पढ़ते जाओ, इसकी वजाहत करते आप करोगे? हाँ मैं करूंगा, उसकी वजाहत मैं एतराज करूंगा। चलिए तो फिर तमीज़ ईमान की वजाहत करिए आप। चलिए फिर तमीज़ ईमान की वजाहत कर दे पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं इस ईमान पर। वो टॉपिक सेट करके बात करेंगे। आप क्यों फिर भाग क्यों रहे यार इधर उधर? फिर बात करो ना सीधे, तुम क्यों भाग रहे हो इधर उधर? और सुनो, तो टॉपिक सेट करके बात करोगे तो बात करो ना, इस पर तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो? तो अजीब आदमी हो यार। ना अभी मैंने एतराज नहीं किया, अभी तो मैंने एतराज नहीं किया, अभी तुम एतराज कर रहे हो ना। एतराज मेरा जिस इबारत पर है मैं उसकी वजाहत भी करूंगा और उसके बारे में बात भी करूंगा। सुनो सीधी सी बात है, आप ये कह दो मैं उर्दू इबारत की वजाहत नहीं कर सकता, मैं कर दूंगा। मैं उर्दू इबारत, अरे मैं थानवी की इबारत की वजाहत क्यों करूंगा? मैं चोर की इबारत, उसकी चोरी इससे करा, मैं क्यों बताऊंगा कि इससे चोरी क्यों किया? समझ में नहीं आई ना इसलिए। एक आदमी चोरी करेगा तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारी, अब यार मेरा मुंह, मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि ऐसा बोल रहे हैं। बोल दो तुम्हारी सुन्नत है, सुन्नत अदा करो, अपने काबिल की सुन्नत अदा करो। सुन्नत क्या है? ये तो मुनाफिकीन के लिए अल्लाह उसके रसूल का तरीका है, मुनाफिकीन के लिए। मुगीरा बिन साहबा को हराम की औलाद नहीं कहा था? मुगीरा बिन साहबा वो, अरे वलीद बिन मुगीरा को, ओए सुनो सुनो सुनो, अबे सुनो सुनो सुनो, अबे सुन ना, अबे सुन तो, अबे सुन तो, अबे सुन, अबे सुन तो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीद बिन मुगीरा को क्या कहा था? हराम की औलाद नहीं कहा वलीद बिन मुगीरा को। अच्छा ठीक, जरा आयत पढ़ना, आयत पढ़ो जरा, आयत उतुल्लिन बादशाही का दलील नहीं है। कौन, इसका शान नुज़ूल क्या है? अबे शान नुज़ूल मतलब क्या हुआ था? तो शान नुज़ूल बताओ ना, आलिम हो ना, आलिमाना गुफ्तगू, शान नुज़ूल बताओ उसका। तो मतलब बताना भाई, बोला कि नहीं बोला अल्लाह पाक ने? बोला कि नहीं? कौन से बोला कि नहीं अल्लाह पाक ने? बताया कि नहीं? रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले के बारे में बोला कि नहीं अल्लाह पाक ने? अच्छा मुझे एक बताओ, कुरान में जो चलो इस पर आ जाओ, तुम इधर उधर भागो मत, हिज़्बुल ईमान पर आओ। तुम इधर उधर भागो, हिज़्बुल ईमान पर आओ। तुम नबी, चलो हिज़्बुल ईमान पर आओ, हिज़्बुल ईमान पर आओ। अबे गुस्ताखे रसूल को इस तरह बोलना, मैंने गालियां नहीं बोला, मैंने लफ्ज़ गाली नहीं बोला, मैंने लफ्ज़ गाली नहीं बोला, मैंने लफ्ज़ गाली नहीं बोला। गुस्ताखे रसूल को इस तरह बोलना, मैंने ये कहा गुस्ताखे रसूल को इस तरह बोलना ये अल्लाह और रसूल की तरीका है। क्या गाली बोला मैंने? लफ्ज़ गाली बोला मैंने? लफ्ज़ गाली ऐसा पकड़े गए हो ना, ऐसा। अबे भाग रहा है यार, किधर किधर चले, भाग रहे तू इधर उधर। चल पहले ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाया, इसको क्लियर करो पहले। अभी आप क्या इल्जाम लगाया बताओ, क्या इल्जाम? का जरिए इस पे तो तुम गाली बकने का इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे मैंने कहाँ बोला गाली बकना? अबे मैंने कहाँ बोला गाली बकना? तो गाली बकना जायज नहीं है फिर? अरे तो मैंने कहाँ बोला गाली बकना? तो अभी क्या कह रहे तुम? मुनाफिकीन को वलीद बिन मुगीरा का जिक्र क्यों किया फिर तुमने? हाँ मैंने ये कहा कि अल्लाह और रसूल की सुन्नत है इस तरह से बोलना, इस तरह से बोलना। तो गाली बकना क्या है? गालियां बकना, बुरा भला बोलना। गालियां कहाँ बोला भाई, गाली कहाँ बोला? तू अपनी तरफ से जोड़ दे बेवकूफ। आज ये ऐसा हाल बेहाल हो गया तेरा फैजान, तू अभी तक के इबारत पर दिया है। बता, चल इबारत पर आ, पेश करी। चल इबारत पर आ, इबारत पर, इबारत मौजू है उस पर बात करनी है तो बात करो, वरना मौजू पर बात कर। आ जा, अरे तुम्हारा इधर उधर मत भाग, मौजू पर आ, मौजू पर आ। को बात करने दे, चुप रहे। तो राहिल खान तू खामोश रह जा, चुप रहे। ये कौन है? ये कौन है तुम्हारे साथ? तेरे मुंह को जिब लगा ले, खामोश रह जा। जिब नहीं होता है, जिब नहीं होता है, जिप होता है, जिब नहीं होता है, जिप होता है। जाहिल मुतलक, पहले बोलना तो सीख ले। ये कौन है तेरे साथ? फैजान, जाहिल। फैजान ये कौन है तुम्हारे साथ? आज ये पकड़े। फैजान ये कौन है तुम्हारे साथ? फैजान, फैजान ये कौन है तुम्हारे साथ? फैजान ये कौन है तुम्हारे साथ? नफी देवबंदी बोल रहा हूँ, ठीक है? कौन बोल रहा है? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। फैजान इसको खामोश कर, फैजान इसको खामोश कर, कराओ। फैजान इसको खामोश कर, इसको खामोश कराओ, ये बीच में बोलेगा नहीं, ये शराइत में से नहीं था। फैजान इसको ये खामोश तीसरा कर, है, इसको बंद कर। तूने शर्त की खिलाफ वर्जी करी है, इसको बंद करा। फैजान खामोश कर इसको। सब चुप हो जाए। हाँ फैजान इसको खामोश कर, फैजान इसको खामोश कर, उसको खामोश कर फैजान, वरना फैजान उसको खामोश कर। पहले समझ गया? हाँ तो फैजान खामोश करो, हाँ तो खामोश करो फिर उसको खामोश करो। कौन है तुम्हारे साथ? वो तुम्हारे साथ कौन है? वो खामोश हो जाइए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इधर तुम बात करो, तुम्हारे साथ वो कौन है? अब्दुल रहमान। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, तुम्हारे साथ कौन है? वो अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान को कॉल पे लेने की बात की थी तुमने मेरे से? अब ये भागने का रास्ता वो बोल नहीं रहा है बीच में। भागने का रास्ता नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, सिर्फ पूछ रहा हूँ,
एक मिनट, ये कह रहा है वो बोल नहीं रहा बीच में, अगर वो बोला नहीं बीच में तो पता कैसे चला कि अब्दुर्रहमान लाइन पे है? बोला है वो, और मैंने अभी तक नहीं बोला, 3 बार बोला है वो। बात कर रहे हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, राहिल खान से तो बात हुई थी, बैठे हुए रहेंगे। राहिल खान से तो बीच में बात हुई थी रहने की, अब्दुर्रहमान से बात हुई थी क्या? रजा तेरे कानों में क्या लगा हुआ है तेरे? तमीज से बात कर, तमीज से बात कर, तमीज से बात कर अब्दुर्रहमान, वरना बहुत जूते खाएगा। तमीज से बात कर। फैजान तुझे बात करनी है या राहिल इख्तियार करनी है? ढंग से बात करो, है ना फैजान, ढंग से बात करो। मत, बहुत देर हो गई भागते भागते। फैजान ढंग से बात करनी है तो करो। कयामत तक तुम थानवी की बोली का दिफा नहीं कर पाओगे, कयामत तक। थानवी की बोली पढ़ा, थानवी की बोली पढ़ा। इसको खामोश कर, इसको खामोश कर। ये खामोश हुआ, ये खामोश हुआ। अच्छा चलो खामोश, इसको खामोश करो। खामोश हुआ ये? जी बिल्कुल खामोश हो। ठीक है, बिल्कुल। अब नहीं बोलेगा ये। अभी जो आप, एक मिनट फैजान, फैजान एक मिनट, फैजान एक मिनट, ये अब नहीं बोलेगा। बोलोगे फैजान साहब बोलो। अच्छा मौलवी फैजान साहब, मौलवी फैजान साहब जी हाँ सुनिए, ये बीच में अब नहीं बोलेगा। आप अपने राहिल खान साहब को चुप कर लीजिए। एक मिनट सुन लो, एक मिनट। ये बीच में अब नहीं बोलेगा, इसलिए कि हमारे दरमियान जो बात हुई थी राहिल खान साहब के जरिए से बात हो रही है। राहिल खान साहब अगर बीच में कोई बात बोल रहा है तो सिर्फ इतना करेंगे मौजू पर बात करिए, वो कुछ नहीं कर रहा है। ये बीच में नहीं बोलेंगे, ये जो भी साहब है बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है? जो भी साहब है बीच में नहीं बोलेंगे। अब आप इस बात से रुजू करते हैं कि वतुल्लिम बाद ज़ाली का ज़नी जो आयत, चलिए यहाँ आइए। यहाँ जो थानवी की मौलवी अशरफ अली थानवी, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये जो जवाब उन्होंने दिया है, इस जवाब पर आ जाइए और मुझे समझा दीजिए अगर आप वाकई बात को हल करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब आप फिर ये बहुत अच्छा, आप बात हल करना चाहते हैं, आप मसले को हल करना चाहते हैं, आप मसले को हल करना चाहते हैं, मसले को उलझाना चाहते हैं। आप जीत और हार का मसला बनाना चाहते हैं या ईमान और कुफ्र के मामले को हल करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप बताएं। एक बात बताओ, मैं आपसे जीत के मुझे कौन सी जन्नत मिली? आप हाँ तो बस, तो ईमान और कुफ्र के मसले को हल करना चाहते हैं ना आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप बात पर आइए। ठीक है, इधर उधर ना भागे, है ही नहीं, बात पर आइए। मैं बात कर रहा हूँ जो उस पर आ जाइए। ठीक है, अब जो है मौलवी अशरफ अली, देखिए मैं अदब से नाम ले रहा हूँ, बहुत अच्छे से। फैजान सुनो, हमारी समझ में नहीं आई थी, मैं उसको फैजान मेरी बात सुनो, फैजान एक बात सुन लो। ये बीच के अंदर जो तुम वजाहत की रट लगा रहे हो, ये एक नंबर की बेवकूफी है। इसलिए कि वजाहत अपनी बात की जो तुमने लिखा है, मैं तुम्हारी बात की कोई वजाहत नहीं करूंगा। ठीक है, इसको समझ लो अच्छी तरह से, है ना? आपको हमारी बात समझ में नहीं आई पूरी तरीके से, हमारी किताब आपकी सारी बात हमारी सब समझ में आ रही है। हमारा जो एतराज है आप पर, सुनिए, हमारा जो एतराज है आप पर वो ये एतराज है कि आपने मेरे आका आपने मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखी की है और उनके इल्म गैब को बच्चों, पागलों, जानवरों के इल्म से तशबीह दी है। ये हमारा एतराज है आप पर, ये हमारा एतराज है आप पर। आप अगर इसकी वजाहत कर सकते हैं, आप इसको क्लियर कर सकते हो तो क्लियर करिए। इधर उधर क्यों भाग रहे हैं आप इतनी देर से? मैं नहीं भाग रहा कहीं भी, मैं तो यही हूँ। मैं तो आपको जब हमारा एतराज, जब आपको मालूम है कि हमारा एतराज आप पर जो है वो हिफ्जुल ईमान की इस बोली पर है, आपको अच्छी तरह मालूम है, तो आप उस बोली की वजाहत करते, अगर आप वाकई मतलब जो है तो हक पसंद आदमी है और अगर आप ये चाहते हैं कि उम्मत में इख्तिलाफ और इंतशार न हो, आप ये चाहते हैं कि तफरकाबाजी न हो, आप ये चाहते हैं कि लोग एक हो जाएं, तो आप इस इबारत की जो है तो सही तावील पेश करते ताकि समझ में आती बात आवाम की समझ में। लेकिन आप कभी सवाल पर भागते हैं, कभी आप जवाब पर आते हैं, फिर जवाब के अंदर वजाहत ढूंढते हैं और इस तरह की बातें कर करके 23-24 मिनट से बल्कि 34 मिनट से आप बात को घुमा रहे हैं इतनी देर से। तो ये तो गलत बात है ना। अगर आपको वाकई मतलब जो है तो इंतशार खत्म करना है, वाकई इख्तिलाफ खत्म करना है, तो इस बोली पर आइए ना, जिस बोली पर हमारा एतराज है। आप एक काम करिए, आप वही इबारत पढ़िए, वही इबारत पढ़िए आप। अगर बोले जैद वही आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर जी, हाँ जी, चलिए मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अच्छा, एक थोड़ी सी बात यहाँ पर ये है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही है। ठीक है, अब ये किसकी बात को रिपीट किया जा रहा है? ज़ैद की बात।
जो जैद ने एतराज वो सवाल किया उस पर, वही तो मौलवी खानी साहब कह रहे हैं कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म दिया जाए। जी माशाअल्लाह जी। जैद सही हो, अगर बकौल जैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अम्र ये है, यानी दरियाफ्त तलब अम्र किससे है? ये जैद से है, ठीक है। दरियाफ्त तलब अम्र ये है। अब आगे बढ़िए आप। जैद तो आलिम नहीं था लेकिन वो पूछ रहे, ठीक है ना। दरियाफ्त तलब अम्र ये है। हाँ जी पढ़िए। हाँ जी, इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब? जी अब ये किससे सवाल हो रहा है? हाँ, सवाल जैद पर हो रहा है ना, कि जैद की मुराद यानी वो बाज उलूम मानता है या कुल मानता है? बाज मानता है, कुल मानता है, ठीक है जी। सुन लीजिए, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आलिमुल गैब कह रहा है जैद, तो ये फरमा रहे हैं कि इस गैब से मुराद बाज गैब या कुल गैब, यानी वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है, आलिमुल गैब कह रहा है, तो बाज गैब की वजह से कह रहा है, ये कुल गैब की वजह से, ठीक है ना। तो सवाल किस पर चल रहा है? आलिमुल गैब कहे जाने पर। तो अब जो मौलाना शरीफ थानवी साहब ने आगे जो, अरे यार एक मिनट फैजान एक मिनट, बस एक मिनट रुक जाओ, है ना, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि रुक जाओ कहा, मैंने रुक जा नहीं कहा, रुक जाओ कहा, अभी आपने गलत सुन लिया, ठीक है, मैंने रुक जाओ कहा, ठीक है। देखिए उन्होंने ये वो जो है तो जैद से कहा कि अगर बकौल जैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब, ठीक है जी। बाज मुतलक उलूम गैबिय्या है या कुल गैब है? कुल गैब मुराद है, यानी जैद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है, तो वो बाज इल्म गैब की वजह से कह रहा है या कुल इल्म गैब की वजह से कह रहा है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात ये है, ठीक है, थोड़ी सी बात ये है, अब आप मुझे बताएं क्या गैब का इल्म नबी के अलावा किसी और को भी है या नहीं है? ये एक डिफरेंट अलग मौजूद है, अलग टॉपिक, उस पर बात करेंगे। अंदर है ये, किसी के अंदर नहीं, अलग मौजूद है, उस पर बात करेंगे हम। अभी पहले ये इबारत पूरी कर ले, फिर उसके बाद आप वजाहत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वजाहत करते जाइए, ठीक है। तो बाज गैब है या कुल गैब, ठीक है जी जी जी। तो बाज गैब या कुल गैब, यानी गैब की दो किस्में कर दी थानवी साहब ने। इल्म गैब की दो किस्में जैद के मुताबिक, बाज गैब या कुल गैब, तो गैब की दो किस्में हो गई ना। सुने तो किसने किया, ये कौन लिखा है? सुने, ये किसने लिखा है? फिर किसने लिखा? ये किताब किसने लिखी? थानवी साहब ने नहीं लिखी। वो सवाल नकल किया गया है, वो सवाल है, सवाल इल्म गैब का है, सवाल वो आलिमुल गैब है और यहाँ इल्म गैब है। सुनिए, अब बात को उलझाई नहीं। आप पहले समझे कि सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर नहीं है, बल्कि आपको आलिमुल गैब कहे जाने पर है। ठीक है ना, वो तो हो गई ना, आलिमुल गैब पर है, मैंने भी तो कहा भी आलिमुल गैब पर है। लफ्ज़ आलिमुल गैब आपने ज़हन में रखें और उसको अपनी बातों में जिक्र करें, तभी ये बात क्लियर होगी। आलिमुल गैब पर सवाल था ना, सुनिए ना फैजान, बात तो वही आ रही ना, आलिमुल गैब पर सवाल था ना। तो इन्होंने कहा कि बाज गैब है या कुल गैब, तो गैब की दो किस्में करी कि नहीं थानवी साहब ने? यहाँ पर क्या है कि ज़ैद अकीदा है, तो यार बात को वजाहत कर लीजिए। हाँ, बोलिए। इल्म गैब की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है, तब वो नहीं, जैद का अकीदा यहाँ पर अभी वाज़ेह नहीं हुआ। ये तो थानवी साहब उस पर इल्जामी तौर पर कह रहे हैं कि बाज गैब या कुल गैब, वो क्या मानता है, बाज गैब मानता है या कुल गैब मानता है? बात चलिए ना हमारा, तो जैद के अकीदा, हाँ वो यही कह रहे हैं जैद के अकीदे पर कि जैद जो आलिमुल गैब कहता है, सुनिए, जैद जो आलिमुल गैब कहता है तो उस गैब से, अरे यार वही तो कह रहे हैं, वो जैद जो आलिमुल गैब कह रहा है, सुनिए तो जैद, अरे सुनिए तो, जैद जो आलिमुल गैब के, जैद की तो बात कर रहा हूँ मैं, जैद बिन हारिसा। आप यहाँ पर ये बताएं कि ये हमारे अकीदे की बात चल रही है। अच्छा, गैब की दो किस्में करी कि नहीं थानवी साहब ने, बताओ आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर हमारे अकीदे की बात चल रही है, जैद के अकीदे की बात चल रही है? हाँ, अच्छा, ये लिखने वाले जो है, ये किताब, ये जवाब लिखने वाले जैद है या थानवी साहब है? अब आप एक बात मुझे बताएं कि कोई साइल आपके पास आता है, ठीक है, हाँ, और सवाल आप उसका नकल करते हैं, तो इबारत आपकी होगी, साइल की होगी? तो मैं वो जो सवाल मुझसे करेगा उस सवाल पर जब मैं जवाब दूंगा, एक मिनट,
जब मैं जवाब दूंगा तो वो जवाब तो मेरा ही होगा ना। सुने, उसने अकीदे पर सवाल किया तो अरे तो जवाब तो मेरा ही होगा ना, किसी और का थोड़ी होगा। सुनो तो, जवाब किसका होगा? जवाब मेरा होगा या जैद का होगा? ये किताब हिफ्जुल ईमान जो है ये जैद के नाम पर छपी है, थानवी साहब के नाम पर छपी है। अभी सुनिए, मैं तो क्लियर करता हूं। सुनिए, यहाँ पर अशरफ अली थानवी साहब ने जो जवाब दिया है वो क्या जवाब? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, सुनिए ज्यादा नहीं। अच्छा चलिए बोलिए। कि बिज़ात इस माना से आलिमुल गैब अल्लाह है और बिल वास्ता इस माना से भी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है। तो अब जो असल सवाल है ना कि बिल वास्ता इल्म गैब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसकी वजह से आलिमुल गैब कहने के नुकसानात क्या हैं, इसको बयान किया गया। बस ये है पूरी किताब की एक हाँ चलो, हो गई बात, हो गई, मैं बोलूं, हो गई बात, मैं बोलूं जी। आप पढ़ दिए, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। उन्होंने अशरफ अली थानवी साहब ने जैद से सवाल किया, मतलब जवाब देते हुए इल्जामी तौर पर जैद से कहा कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब, जिसके गैब कह रहा है। अरे यार सुन, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब? सुने तो यार, ठीक है। तो ये बाज गैब है या कुल गैब, ये जो दो बातें थानवी साहब ने कही, तो गैब की दो किस्में करी कि नहीं थानवी साहब ने? एक बाज गैब और एक कुल गैब करी कि नहीं? बाज गैब ये तो है, बाज उलूम गैबिय्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता किया है, इसमें तो कोई। अरे यार थानवी साहब ने यहाँ थानवी साहब ने कुल गैब और बाज गैब जो बोला, तो बाज गैब और कुल गैब तो दो किस्में करी कि नहीं? दो किस्में करी कि नहीं, बताइए, पहले बताइए। यहाँ वजाहत की गई है जैद के सवाल के मुताबिक ही। यहाँ तो भाई दो किस्में करी कि नहीं थानवी साहब ने? दो किस्में करी। सुनो, जिस तरीके से दो किस्में करी कि नहीं थानवी साहब रहमतुल्लाह थानवी साहब ने? हाँ, वो साहिल के सवाल के मुताबिक, मैं तो बोल रहा हूँ ना, साहिल के सवाल के मुताबिक थानवी साहब ने उसको इल्जामी जवाब देते हुए गैब की दो किस्में करी या नहीं, पहले बताइए आप। गैब की दो किस्में हुई कि नहीं? ठीक है आगे। गैब की दो किस्में हुई कि नहीं, पहले बताइए आप। चलिए आप आगे तो चलिए, आप जवाब पढ़िए। अरे यार आप बोलिए तो सही कि गैब की यहाँ दो किस्में करी थानवी साहब ने। आगे पढ़िए ना, आगे समझाने के लिए मैं बता तो रहा हूँ, आप मैं एतराज कर रहा हूँ तो आप बोल नहीं रहे। आप इंतजार खत्म करना चाहते हैं, आप बात को खींचना चाहते हैं। यार ऑलरेडी मैं बहुत टाइम लेके आपसे बात कर रहा हूँ। अब आप मुझे बोलिए, आप मुझे बताइए कि गैब की दो किस्में थानवी साहब ने करी या नहीं करी? जैद के मुताबिक समझाने के लिए करी, ठीक है। और समझाने के लिए करी, किसी भी मामले में करी कि नहीं करी? अरे हाँ करी है। चलिए आप आगे बढ़िए ना, करी। चलिए माशाल्लाह, ठीक है। तो गैब की दो किस्में थानवी साहब ने करी है ना। राहिल भाई सुनिएगा, आप बोलिएगा नहीं, बस सिर्फ सुनिएगा, और सामीन आप भी सुनिए कि गैब की दो किस्में थानवी साहब ने करी, बाज गैब और कुल गैब, ठीक है। तो बाज गैब और कुल गैब ये भी बात सुन तो ली। अरे भाई किसी को समझाने के लिए किया कि नहीं किया? अरे किसी को समझाने के लिए किया, अब आगे किसी को समझाने। तो आप रोक क्यों रहे? फिर मुझे बात तो करने दीजिए, आप रोक रहे ना बीच में, तो मुझे बोलना पड़ रहा है। देखिए, बाज गैब और कुल गैब दो किस्में हुई जी, आगे बढ़िए। हाँ, एक हुई, देखिए सामीन सुनिए, थानवी साहब ने दो किस्में करी, एक बाज गैब और एक कुल गैब। तो बाज गैब जो है, कुल गैब की नफी कर दी उन्होंने, क्योंकि कुल गैब का इनकार आगे की बोली में मिल रहा है। तो अभी क्योंकि कुल गैब तो, और हम भी कुल गैब अल्लाह रसूलुल्लाह के लिए कुल गैब नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, ठीक है। थानवी साहब ने भी नहीं माना। थानवी साहब बाज उलूम गैबिया मानते हैं, बाज उलूम गैबिया थानवी साहब मानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जी बिल्कुल, बाज उलूम गैबिया पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तला किया गया है, हमारा अकीदा है। जी सुभान अल्लाह, बाज उलूम गैबिया पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तला किया गया है, ये थानवी साहब का अकीदा है, हमारा भी। सुभान अल्लाह, ये थानवी साहब का भी अकीदा है, मौलवी फैजान साहब का भी अकीदा है, मौलवी फैजान साहब का भी अकीदा है कि बाज उलूम गैबिया पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तला किया गया है। यहाँ से साबित होता है कि बाज उलूम गैबिया देवबंदियों के नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज उलूम गैबिया जानते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सुनिए एक मिनट, तो सुनिए, जानने में और मुत्तला होने में, ठीक है। आप थोड़ा डीपली अगर जाएंगे, मुत्तला हो गए तो जाना नहीं। सुनिए, अगर मुत्तला हो गए तो जानेंगे नहीं। सुनिए, अरे मुत्तला होने के बाद जान लिए कि नहीं? मुत्तला होने के बाद जान लिए कि नहीं? यार सुनिए, ये हंसे ना इब्लीसों की तरह, ठीक है बात। अब यार क्या बोले आप मुझे, क्या बोले? हंसे नहीं क्या?
हंसे नहीं किसकी तरह? हंसे ना आप। किसकी तरह नहीं हंसे बोले? मैंने तो शैतानों को देखा इस तरह हंसते हुए। नहीं, ये आप गलत बात बोल रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि अदब से बात करना, अब आप गलत बात कर रहे हैं। मतलब इस तरह जो हंसे वो शैतान हंसता है। आपने शैतान को देखा है? आप कह रहे मैंने शैतान देखा है। सुनिए, आपने शैतान देखा है? कहाँ मिला था आपको शैतान? कहाँ मिला था? फैजान बताओ, फैजान बताओ, शैतान कहाँ मिला था तुम्हें? शैतान कहाँ पर मिला था? अभी तुमने शैतान को हंसते हुए कब देखा वो बताओ? अरे सुनो ना, अभी बता रहा हूँ। तुमने शैतान, हाँ, तुमने शैतान को हंसते हुए कब देखा? हाँ सुनो, सुनाओ, अभी दे रहा हूँ दलील। हाँ सुनाओ, सुनाओ, हाँ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। من الجنة، من الجنة आगे क्या है? आगे क्या है? पढ़िए ना। आगे अरे पढ़िए ना, आप पढ़ रहे तो बताओ ना, फिर वजाहत मुझसे पूछेंगे। ये अजीब हाल है आपका, मतलब बात आप करते हो, वजाहत हमसे पूछते हो। शैतान को आपने इस तरह शैतान को हंसते हुए देखा? अभी आपने कहा, तो आप झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे? अरे भाई, शैतान को कब देखा? शैतान को कब देखे आप? इसका मतलब आप शैतान को कब देखा आपने हंसते हुए? अरे वही तो बता रहा हूँ ना, अल्लज़ी युवस्विसु। अरे हंसते हुए कब देखा शैतान को, वो बताइए। वही तो बता रहा हूँ, मिनल जिन्नती वन्नास, जिन्नात और इंसान। क्या कहा गया? तो हंसते हुए कब देखा शैतान को? आप कह रहे हैं मैंने शैतान को इस तरह हंसते हुए देखा है, आप कह रहे हैं ना इस तरह, तो आपको कब मुलाकात हुई थी आपकी शैतान से? तो सुनो, शयातीन, जिन्नात और इंसान। अरे वो शरारतें नहीं पूछ रहा हूँ मैं, हंसने की बात पूछ रहा हूँ। इधर उधर मत भागिए, देखिए बात किया करे यार, इधर उधर क्यों भागती है? कुरान से, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल कुरान से बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो चलिए, तो बताइए कि मतलब जो शैतान को कब हंसते हुए देखा आपने, कहाँ पर हंसते हुए देखा था, और कब आपकी मुलाकात हुई थी शैतान से, आपके जद्दे अमजद से? बुरा मत मानिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, आपका भी साबित करूंगा उसको मैं। माशाल्लाह, नहीं हमने तो साबित कर दिया, आपने बिल्कुल भी बोल दिया, क्लियर हो गया। चलिए, तो आपने कोई चलिए फिर ये कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इनमें गैर का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरिया तलब ये अम्र है। अरे डर गए क्या? डर गए? अच्छा, उस पर बात करना है क्या? शैतान वाली बात पर बात करना है कि इस पर करना है? तुम्हें तुम्हारे जद्दे इस पर करना है या उस पर करना है? चलो सुनाओ, तुमने शैतान को कहाँ देखा? चलो बताओ, चलो दलील दे। पहले तुम मुतसिम बात अजाली के, चलो दलील दो, तुमने शैतान को कहाँ देखा? तुमने शैतान को कहाँ देखा बताओ? सुन लिया? शैतान से तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई थी और शैतान कहाँ हंसा था तुमको देख करके? चलो जवाब दूं? हाँ जवाब दो। जी दीजिए। जवाब दे दूं मैं आपको? अरे दो ना यार, क्यों भाग रहे हैं? दे दो जवाब। सामीन, अरे कितनी देर से भाग रहे हैं? पूरे नास उठा करके देखिए, उसका तर्जुमा पढ़ लें। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। सूर्य नाच का क्या तर्जमा है? तर्जमा बताइए। हंसते हुए देखा आपने, सूर्य नाच का तर्जमा है कि शैतान को फैजान ने हंसते हुए देखा। मैं शैतान वाले जिन्नात और इंसान भी होते हैं, हंसते हुए आपने कहा कि मैंने शैतान को हंसते हुए देखा, तो शैतान से मुलाकात कहाँ पर हुई थी आपकी? ख्वाब में थानवी साहब तो नहीं आए थे आपके? कुरान क्या है? अरे यार आप इधर उधर मत भागिए, आप ये बताइए कि शैतान को आपने हंसते हुए देखा, कहाँ देखा? चलिए बताइए। आप इस पर बात कर रहे हैं ना, आप इस पर बात करेंगे या इस पर बात करेंगे? जिस पर बोलेंगे उस पर बात होगी। चलिए, मैंने तुम्हें देखा हंसते हुए, तुम शैतान हो, साबित करूं? मुझे हंसते हुए देखा, मैं शैतान हूँ? हाँ तुम शैतान हो, साबित कर दूंगा इस बात को मैं शैतान को, तुमने ये कहा मुझसे, ठीक है? तुम शैतान आपके नजदीक मुसलमान है या काफिर है? मुझे तो नहीं पता ना। शैतान आपके नजदीक मुसलमान है या काफिर है? तुम कौन हो मुझे पता ही नहीं है ना, तुम्हारे बारे में पता ही नहीं। शैतान आपके नजदीक मुसलमान है या काफिर है? बताएं। शैतान तो मुसलमान है ही नहीं, और तुम्हारा भी। शैतान आपके नजदीक क्या है? आपके नजदीक क्या है शैतान? हमारे नजदीक का शैतान तो काफिर है ही, शैतान को तो लानत है। आपके नजदीक शैतान काफिर है? आपके नजदीक शैतान काफिर है? एक मिनट यार, एक मिनट, आपके नजदीक शैतान काफिर है और आपने अभी मुझे सलाम किया था, तो शैतान को आप सलामती की दुआ देते हैं? हाँ, उसके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उसको जो हिदायत। शैतान को सलामती की दुआ देते हैं आप? लो भाई देवबंदी हजरात शैतान को सलामती की दुआ देते, सुन लो, सुनो देवबंदी हजरात शैतानों को भी सलाम करते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देवबंदी हजरात शैतानों को सलाम करते हैं। तौबा 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 तौबा। ये फैजान देवबंदी साहब है, ये देवबंदियों के मुनाजिर हैं, और इनका हाल ये है, शैतानों को सलाम कर रहे हैं, कभी शैतान को हंसता हुआ देखते हैं, कभी उसको सलाम करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि देवबंदी शैतानों के भाई, और आखिर क्यों ना करेंगे? आखिर देवबंदी है ना, शैतान ही के तो बंदे हैं, बिल्कुल शैतान ही के तो बंदे हैं।
भागना? मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो जगह पर मौजूद हूँ बेटे। मैं अपने घर में बैठा हूँ, रोड पर नहीं हूँ कि घर से निकाल दिया किसी ने मुझे, जैसे तुम रोड पर चले जाते हो। हाँ समझे, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ। तुम्हारा हाल नहीं है कि तुम्हारी तरफ घर से भगा दिया, घर से बाहर निकल के बात कर रहे, घर में बात मत करना बोल दिया घर वालों ने, तो बाहर निकल करके बात कर रहे हो। हाँ नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में बैठे ना। तुम ही कभी बाहर घूमते हो, कभी जो है तो कंपनी में पहुंच जाते हो, कभी कोचिंग पे पहुंच जाते हो, कभी इधर भागते हो, कभी उधर भागते हो। तुम जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाल तो ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों से चले देख के तलवा तेरा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ चलिए बताइए, शैतान को हंसते हुए कहाँ देखा? इस पर बात करना है या इबारत पर आऊं? देखा मैंने। इस पर बात करोगे या इबारत पर आऊं? जल्दी बोलो। आ जाओ, चलो मेन मकसद पर ही आ जाओ। इबारत पर आऊं? चलिए फिर तौबा करो जल्दी। तुम शैतान को तुमने नहीं देखा, तुम तौबा करो। तुमने झूठ बोला, और झूठ बोलने वालों पर कुरान की लानत है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तुमने शैतान को नहीं देखा, तुम तौबा करो पहले। शैतान क्यों? इंसान शैतान नहीं होता? तुमने शैतान को नहीं देखा। तुमने यहाँ देखो, तुमने शैतान मुराद लिया था या इंसान से शैतान मुराद लिया था? तुमने यहाँ डायरेक्ट शैतान बोला है ना? तुमने शैतान को नहीं देखा, तुम इससे तौबा करो, फिर हम आगे बढ़े। पहले तुम इससे तौबा करो, और या फिर तुम मानो कि तुम शैतान को सलामती की दुआएं देते हो। माज़अल्लाह, तुम देवबंदी शैतान को सलामती की दुआएं देते हो, शैतान को सलाम करते हो। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कितने जाहिल हो तुम लोग। हाँ, शैतान अल्लाह और रसूल का दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, और तुम लोग जो है तो उसको सलामती की दुआएं देते हो, उसके लिए दुआएं करते हो। कितनी बेवकूफी और जहालत की बात है। हाँ, कितने बड़े जाहिल हो तुम। जहालत तो तुम्हारी। फैजान, अरे वो तो जब सुनेंगे ना लोग रिकॉर्डिंग, तो कहेंगे कि एक देवबंदी और भागा, थानवी साहब जिंदगी भर भागते रहे, फैजान जिंदगी भर भागेगा अशफाक पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। तुमसे उर्दू। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, भागते चलो। अरे पहले तुम तौबा करोगे, अब आगे। पहले तौबा करो। किस बात की तौबा? तुमने शैतान को देखा या नहीं देखा, ये बताओ। इंसानों में शैतान नहीं। तुमने शैतान को देखा या नहीं देखा? शैतान में होता है नहीं होते। तुम रसूलुल्लाह, तुम अल्लाह की कसम खाकर कहो कि तुम्हारी मुराद यही थी कि मैंने एक आदमी के बारे में बोला कि मैंने शैतान को देखा। चलो कसम खाकर बोलो। क्या कसम खाऊं? किस बात पर कसम खाऊं मैं? तुम कसम खाकर ये बोलो कि मैंने जो कहा मैंने शैतान को देखा, ये मैंने इंसानों के बारे में बोला था, शैतान के बारे में नहीं बोला था। बताओ, कसम खाओ। अरे भाई, तो तुम अपनी मुराद बता दो। तुम कसम खाकर कहो कि मैंने जो ये लफ्ज कहा कि शैतान को मैंने देखा हंसते हुए, ये मैंने शैतान के लिए नहीं, इंसान के लिए कहा था। चलिए बोलिए, कसम खाइए, कसम खाइए, कसम खाइए, कसम खाइए बेटे। मंतिक में तो उलझा हुआ है तू अभी। मंतिक क्या बताएगा? हाँ चल सुनाओ। चलो तुम शैतानों को सलामी देने वाले लोग आगे बढ़े। शैतान को सलाम दिया, उसकी तौबा कर लो। चलो पहले शैतान को सलाम करने की तौबा करो, उसके बाद आगे बढ़ो। शैतान की सलाम किया, उसके बाद आगे बढ़ो, तौबा करो जल्दी। ठीक है, तो तुम ये कबूल कर लो, हाँ मैं शैतान हूँ, मैं तौबा करूँ। तुम कबूल कर लो मैं शैतान हूँ, कबूल कर लो मैं शैतान। मैंने तो नहीं कहा, तुमने कहा कि तुमने शैतान को देखा। मैंने कब कहा कुछ? लो, तुम ही तो कह रहे हो मैं शैतान हूँ, तुम खुद कबूल कर। तुमने कहा ना मैंने शैतान को देखा। तुमने कहा ना मैंने शैतान को देखा। हाँ, तुमने कहा ना कि मैंने शैतान को देखा। चलो अच्छा, तुमने कहा मैंने शैतान को हंसते हुए देखा, और फिर इसके बाद फौरन कहा कि हम शैतान को सलामती की दुआ देते, सलाम करते हैं। तुमने ये कहा कि मैं शैतान को सलाम करते हैं हम लोग। तो देवबंदी शैतान को सलाम करते हैं। सामईन अच्छी तरह देख लीजिए, सुन लीजिए। हम इसीलिए कहते हैं देव के बंदे, शैतान के बंदे शैतान को सलाम करते हैं। हम रसूलुल्लाह को सलाम करें तो इनको तकलीफ होती है, ये शैतान को सलाम करते हैं। ये तौबा करने को तैयार नहीं है। शैतान को सलाम करने के बावजूद भी तौबा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि तौबा इनकी किस्मत में लिखी हुई नहीं है। शैतान को सलाम करने के बावजूद तौबा नहीं कर रहा है। शैतान को सलाम किया फिर भी तौबा नहीं कर रहा है। सुनो, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो जब शैतान को कैसे देख लिया तो तूने झूठ बोला। जब तुमने ये बोला और तुझे नहीं पता था, तू कह रहा है, तो तूने शैतान को कैसे देखा? तूने झूठ बोला। तो झूठ बोलने पर तौबा कर, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। झूठ बोलने पर तौबा कर जल्दी। तुम्हारे झूठ बोलते हुए तुम किस तरीके से इबारत को घुमा रहे हो, तुम सब सामने। कहाँ इबारत घुमाई मैंने तो? अरे यार, तुम्हारी तो हालत खराब है। तुम ये बता नहीं रहे हो, कुल गैब और बात गैर में उलझे हुए हो, आगे पढ़ने नहीं दे रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो। इबारत पढ़ोगे अब तो तौबा कर लोगे?
चलो इबारत पढ़ो चलो। अच्छा मतलब नहीं करोगे तौबा। चलिए, तुमको शैतान मुबारक, हमको रसूलुल्लाह मुबारक। चलिए आगे बढ़िए। तुमको शैतान मुबारक, हमको रसूलुल्लाह मुबारक। अरे हाँ, तुमको शैतान मुबारक। देवबंदियों को शैतान मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला देवबंदियों का हश्र शैतान के साथ करे, आमीन। शैतान के साथ करे। हमको रसूलुल्लाह मुबारक हो, क्योंकि हम रसूलुल्लाह पर सलाम करते, देवबंदी शैतानों को सलाम करते। चलिए हाँ, तौबा कर लो यार एक बार। देखो आज के मैदान में थानवी साहब बचाने नहीं आएंगे, मैं भी बचाने नहीं आऊंगा, कोई और बचाने नहीं आएगा। इस तरह झूठ बोलकर ऐसी बातें करके अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। बोल दो अस्तगफिरुल्लाह, जल्दी बोल। झूठ सामने लाऊंगा तब अस्तगफिरुल्लाह बोल दो यार, अस्तगफिरुल्लाह बोल दो। करूंगा मैं शादी से, अभी करूंगा मैं शादी। अरे कर दो अस्तगफिरुल्लाह, वरना क्या मालूम क्या होगा तुम्हारा। तौबा कर लो, देखो तौबा कर लो। चाल होती है कि मेरी बात फैजान सुनो, अरे फैजान सुनो तो, अरे भागूंगा थोड़ी, तुझे भगाऊंगा। अरे तुझे भगाऊंगा बेटे, भागूंगा थोड़ी है। अरे वो तो मैं बिल्कुल पढ़नी है। तौबा करो, पढ़ो वरना दफा हो जाओ। तौबा करो। इबारत पढ़नी है तो पढ़ो वरना दफा हो जाओ। शैतानों से बात, शैतानों को सलाम। तौबा करो। चलिए भाई जाने में। अच्छा बिल्कुल शैतानों को तो सलाम करता है। चलो बिल्कुल, चलिए भाई सामीन देख लिया, बिल्कुल बोल रहे हैं। जब मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतना बड़ा शैतान हो, मुझे मालूम हो रहा है कि तुम कौन। तो ये अच्छा क्या हुआ, तुमको ये मालूम पड़ गया? तुमको क्या मालूम पड़ गया? पढ़ोगे? अरे यार तुम पहले बात पूरी करो। अब तुमको क्या मालूम पड़ गया? अरे यार तुम क्यों मौजूद से क्यों उठ रहे हो? अरे मैं तो इबारत पढ़ रहा था, तुमने बोला ना तुमको कुछ मालूम पड़ गया, तो बताओ ना क्या मालूम पड़ गया। अरे पढ़ो, ठीक है। अरे सुन यार, अरे देखो बीच में मत बोला, इबारत पढ़ दो। बीच में मत बोला, इबारत पढ़ दो। तुम्हारे मुँह से कुरान हदीस अच्छी नहीं लगती, तुम शैतान को सलाम करो। चलो इबारत सुनो, इबारत सुनो। शैतान को कुरान तुमने अभी इकरार किया कि हम करते हैं, तुमने इकरार किया, रिकॉर्डिंग हुई है, तुमने इकरार किया। चलिए तुमने कहा शैतान को हम सलाम करते हैं। चलो वो बताऊंगा, मैं आगे पढ़ रहा हूँ। मालूम नहीं, पढ़ू या भागोगे अब? अरे वो तुम भागोगे। अरे पढ़ू के भागोगे? चलो पढ़ो पूरी रात। हाँ अरे तुम तो पूरी रात बैठोगे, तुम्हारे घर वालों ने तुमको लात मार के बाहर निकाल दिया, रोड पर खदेड़ के बात कर रहे हो तुम, पूरी रात बैठोगे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हो, देखो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हो, मतलब वाकई ऐसा हुआ है तुम्हारे तो है ना। यार बातचीत आएगी तो क्या होगा, ऐसी ऐसी हरकतें करेगा तो जो बुलाती नहीं इसका बताओ। ये चूजा लोगों को मतलब जो था वो कहता रहता है, चैलेंज देते रहता है। बताइए चलिए। हाँ इसको चलो बाग गए भाई या कुल गए, आ जाऊं? हाँ पढ़ो पढ़ूं? हाँ पढ़ो ना। हेलो पढ़ूं? आप खामोश रहोगे ना? जी पढ़ो जल्दी पढ़ो, नहीं तो दिन जाग जाएगा तुम्हारा बीच में अचानक, है ना? अरे भाई पढ़ोगे आप, टाइम नहीं करूँगा। हाँ मुराद गैब बाज क्या है, इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब, ठीक है जी। यहाँ सामीन से मैं बात कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ मत बोलो बिल्कुल। सामीन से बात करो, तुमसे नहीं कर रहा हूँ, तुम खामोश रहो। सामीन देख लीजिए, बाज यहाँ पर दो इल्म गैब की दो किस्में की है। अरे यार इल्म गैब की दो किस्में अभी तो तुमने मानी ना, क्या इसी देर से भूल गए होंगे लोग, तो बताना नहीं पड़ेगा। बताना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल वजाहत करूंगा मैं, बिल्कुल वजाहत करूंगा। मुझे एतराज है इस इबारत पर, मुझे एतराज है इस इबारत पर। पूरे जवाब की वजाहत करोगे? मुझे इस इबारत पर एतराज है, मुझे तुम्हारी चोरी करने पर एतराज है। तुम्हारी पूरी जिंदगी थोड़ी पढ़ूंगा मैं, तुम्हारी चोरी करने पर एतराज है, मुझे तुम्हारे जिना करने पर एतराज है, मुझे तुम्हारी इबादत करने पर एतराज है, मुझे तुम्हारे जो है ना गुनाह करने पर एतराज है, मुझे तुम्हारी जलील होने पर एतराज है। इसलिए मैं उसकी इबारत पर बात करूंगा, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी थोड़ी पढ़ते चले जाऊंगा। तो थानवी साहब की जिस इबारत पर मुझे एतराज है वो पढ़ रहा हूँ मैं, और उसकी वजाहत भी करूंगा। आगे पढ़ो। हाँ बाज गैब मुराद है या गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब? अगर देखिए कुल गैब तो खत्म कर दिया उन्होंने, अब बाज गैब पर आए हैं वो। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद हैं, किसके लिए मुराद बोल रहे हैं? अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है, यानी ज़ैद बाज उलूम गैबिया की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है। हाँ
अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ैद बाज़ उलूम गैबिया की वजह से आलिमुल गैब समझ रहा है बकौल तुम्हारे, ठीक है, बाज़ उलूम गैबिया मुराद है, तो इसमें सुनो, तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है जी। माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह। एक मिनट सुनो, नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा नहीं रुकूंगा मैं। अब आप अभी क्या वजाहत? वजाहत नहीं करूंगा। हाँ चलो बस, हाँ चलो ठीक, करो। ये है वो इबादत को लेके चुप करके सुना, तो मैं वजाहत कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ सुन रहा हूँ ना, सुनाओ ना, सुन रहा हूँ ना, सुनो। ये है वो इबादत जिसको लेकर के इनके मुफस्सिर और इनके तमाम उलमा ने हमारे ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर क्या था कि ज़ैद का जो अकीदा था कि वो बाज़ उलूम गैबिया की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब समझ रहा था, तो करते हुए यहाँ पर खान साहब ने बात कायम की है कि अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं, यानी ज़ैद बाज़ उलूम गैबिया की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है, तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है, ठीक है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, 10 बार माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह। चुप करो ना, अभी मैं वजाहत कर रहा हूँ। ऐसा इसमें गैर तो कैसा सुनो, अभी चुप रहना, वजाहत नहीं। अरे कैसा इल्म है बताओ ना, वजाहत करो ना, मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं ही तो पूछ रहा हूँ। क्यों बोल रहे हो? वजाहत नहीं कर तो मैं पूछूंगा नहीं, कैसा इल्म है, ऐसा से कैसा इल्म है? यहाँ तशबीह के लिए तो पहली बात मुराद नहीं है, ठीक है। अगर बात एक मिनट वो उधर मत जाओ, अगर बात उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब, कैसा इल्म गैब? पूरी इबारत पढ़ो नीचे, पूरी इबारत पढ़ो फिर मैं वजाहत कर। कैसा इल्म गैब वो बताओ, कैसा इल्म गैब? पूरी इबारत पढ़ो फिर मैं वजाहत कर रहा हूँ। अगर बात उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अम्र, बल्कि हर सभी व मजनू, बल्कि जमी हैवाना तो बहाइन के लिए भी हासिल है। माज़अल्लाह। अब आगे पढ़ो ना, क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी है, तो चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए। और पढ़ूं बिल्कुल अभी चुप। अच्छा सुनो। हाँ ठीक। जो इमाम अहमद ने इबारत नकल की तो उसमें उन्होंने जो वजाहत हो गई थी वो जुमला ये कि क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से मख्फी है, उसको काट दिया, इसको बयान नहीं किया। अब पीछे से मैं दोबारा इसकी वजाहत कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए, मैं इसी इबारत की वजाहत करता चलूंगा। तरफ अब ये है कि गैब से मुराद बात गैब है या खुद है। ज़ैद का अकीदा आपने सुन लिया था, तो बिल्कुल चुप रहना। ज़ैद का अकीदा आप सबने सुन लिया था कि ज़ैद जो है बाज़ उलूम गैबिया की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा था आवाज नहीं आ रही फैजान साहब, फोन के करीब आइए। आवाज कट रही है आपकी फैजान साहब, आप जरा कहीं दूसरी जगह से निकलिए, आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, फरमा रहे हैं आपकी आवाज कट रही थी। अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है, यानी ज़ैद बाज़ उलूम गैबिया ठीक है मुराद लेते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है, तो फिर इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है? अच्छा माज़अल्लाह, क्लियर करिए, आवाज क्लियर करिए, आवाज कट रही है आपकी। क्लियर आ रही है आवाज मेरी? बिल्कुल नहीं, यहाँ कट रही है, यहाँ कट रही है आवाज, यहाँ कट रही है। मेरे बिल्कुल नेटवर्क फुल है, मेरे नेटवर्क बिल्कुल फुल है। नहीं, यहाँ आवाज कट रही थी, इसलिए मैंने वापस पूछ लिया। मुझे आप डिस्टर्ब नहीं। अरे तो भाई बताना, अबे तो भाई आवाज तो आना चाहिए ना, कि कुछ भी मतलब बोलते चले जाओगे। करें डिस्टर्ब न करें, आवाज घुसेड़ दोगे कहीं पर जाकर, कहोगे डिस्टर्ब न करें। अभी आप चुप रहेंगे, फिर मुझे वरना बात दोबारा चुप तो हूँ, तो आवाज क्लियर करिए ना। चलिए आवाज क्लियर करिए। तो आप बिल्कुल चुप रहे, बिल्कुल नेटवर्क फुल है, मैं बाहर खड़ा हूँ, इसलिए बाहर। आप फिर बाहर निकल गए, नेटवर्क में आइए ना, बाहर क्यों निकल जाते, बार बार क्यों भगा देते घर वाले आपको? भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 5 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह 100 गज कितनी है? थोड़ा सा अंदर है, आपकी तरह नहीं है, कितनी? ठीक है ना? कितनी? लेकिन मैं आपको बताने कह रहा हूँ, मुझे जवाब कितनी है? बिल्डिंग कितनी है? अरे यार आवाज देखो कहाँ जा रही है इनकी, कह रहे आवाज सुनो। हेलो, की आवाज आ रही है नहीं आ रही है? अरे उनको आ रही है, हमको नहीं आ रही ना, आना चाहिए ना सर। हमारी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर आना चाहिए ना, यहाँ बताइए। ठीक है, अब क्लियर आ रही है आपको? हाँ, बिल्डिंग कितनी है वो बताइए।
जी। तो बिल्डिंग कितनी आपकी? अगर बाज़ उलूम गैबी के मुराद हैं तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस है? यानी ज़ैद अगर बाज़ उलूम माज़अल्लाह हुजूर, अगर ज़ैद हुजूर की कोई खासियत ही नहीं है। अगर बाज़ उलूम गैबिया भी अगर मुराद है तो हुजूर की कोई खासियत नहीं है इसमें। अरे तो चुप करोगे तुम? क्यों तुम काम करा रहे हो बीच में? मैं वजाहत कर रहा हूँ ना पूरी। एक मिनट देखिए, आप भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, बात को जो है टूल नहीं मिल रही है, ठीक है। आप एक काम करें, 3 मिनट बात कर अशफाक साहब इसको चुप कराइए, ये नहीं बोल सकता बीच में। अरे ये खामोश ये नहीं बोल सकता बीच में। रहमान बोल रहा है क्या? हाँ, ये नहीं बोल सकता बीच में, ये बिल्कुल नहीं बोल सकता। अब्दुल रहमान बिल्कुल चुप रहेगा। अब्दुल रहमान बिल्कुल चुप रहेगा। अब्दुल रहमान को भगाओ यहाँ से, भगाओ बिल्कुल अब्दुल रहमान को यहाँ से। अब्दुल रहमान को निकालो यहाँ से, इसको चुप करो, निकालो। अब्दुल शैतान को निकालो यहाँ से, अब्दुल शैतान को यहाँ से निकालो। अब्दुल शैतान को यहाँ से निकाल। अब्दुल शैतान बात नहीं करेगा। अब्दुल शैतान को निकाल बाहर। अब्दुल शैतान क्यों बात करेगा? अब्दुल शैतान निकल। अब्दुल शैतान भागे यहाँ से। अब्दुल शैतान क्यों बात करेगा? अबे अशफाक चेंबर, तुम मुझे शैतान। अब्दुल शैतान खामोश रहे। अब्दुल शैतान अपनी जगह। अब्दुल शैतान खामोश रहे। अब्दुल शैतान को खामोश कर। शैतान अब्दुल शैतान को खामोश करो। शैतान अब्दुल शैतान को खामोश करो। शैतान अब्दुल शैतान को खामोश करो। अब्दुल शैतान को खामोश करो। अब्दुल शैतान भाग रहे। अब्दुल शैतान को खामोश करो। अब्दुल शैतान क्यों बोल रहा है बीच में? सड़ी हुई भाई तुम्हारा भाई नहीं है, अशफाक साहब तुम्हारा भाई नहीं है। अब्दुल शैतान क्यों बोल रहा है बीच में? अब्दुल शैतान क्यों बोल रहा है बीच में? नहीं बोलना चाहिए ना अब्दुल शैतान को। अब्दुल शैतान को खामोश करो। अब्दुल शैतान को पहले खामोश करो। पहले अब्दुल शैतान को खामोश करो, फिर बात करूंगा मैं। पहले अब्दुल शैतान आप नहीं बोलेगा। अब्दुल शैतान से एक बार उठक बैठक लगवाओ। अब्दुल शैतान को बोलो उठक बैठक लगा, बीच में बार बार बोलता है नालायक। उठक बैठक लगवाओ, अब्दुल शैतान से कान पकड़वाओ उसके बाद बात करना मुझसे। खामोश हो जाइए, शैतान को दिक्कत होगी। अब्दुल शैतान को पहले कान पकड़वा पेश करके जो गलती करी तूने 3 बार, मैं तो यहाँ मेरे सामने पर इतने 76 मारता कि उसके जो है ना पीछे का पूरा इलाका सिखा देता मैं। पढ़ूं सड़ी हुई कोठी में रईसी डालता कि वो मुंह से निकल जाती थी। ये अब्दुल शैतान को खामोश करो। अब्दुल शैतान को। अब्दुल शैतान खामोश हो। अब्दुल शैतान खामोश हो। एक मिनट हजरत, अंडी बंडी संडी। अब अब्दुल शैतान बोला तो इसकी बस आगे समझ जाओ। चलो फैजान बोलो। अब्दुल शैतान खामोश रहना। हाँ अब्दुल शैतान, चलो हाँ फैजान बोलो। अब मैं अब्दुल शैतान को अच्छा 1 मिनट फैजान, 1 मिनट फैजान, अब्दुल शैतान को आप बोल दो आखिरी बार कि अब नहीं बोलेगा, ठीक है? अब अगर अब्दुल शैतान ने बोला ना, मैं अपनी इसी बात पर इंशाल्लाह वजाहत करके मैं वजाहत कर दूंगा। आपको मानना हो तो मानना, ना मानना हो तो आपकी मर्जी। क्लियर करिए ना, बात नहीं होगी ना। आप इंतजार दूर करना चाहते ना, क्लियर करिए सारी बात। आप भागेंगे थोड़ी, क्लियर करेंगे। रात भर बात करेंगे ना, आपने कहा मैं रात भर बात करूंगा आपसे। वैसे भी हम तो घर के अंदर बैठे हुए, पूरा घर जागेगा हमारा, क्योंकि जोर जोर से बात करूंगा। मेरे पूरी फैमिली जागेगी। तुमको तो घर से बाहर निकाल दिया, तुम बाहर भी बात कर लोगे। मैं भी बात खत्म कर रहा हूँ, मैं भी जवाब। हाँ चलो बोलो, जवाब दो। कुछ भी मत बोलना, ठीक है? बोलो, कुछ भी क्यों नहीं बोलूंगा। अब्दुल शैतान बीच में बोलेगा नहीं। अब्दुल शैतान को खामोश रखेंगे। आप पहले अब्दुल शैतान को बोलो कि बीच में कुछ मत बोलना। बोलो उसको। मुझे ललकार रहा है, बात करने की इसकी औकात नहीं है, मुझे ललकार रहा है। चल मुंह बंद करके बैठ। जिप लगा, जिप क्या कह रहा था? अब्दुल शैतान फिर बोला। अब्दुल शैतान क्यों बोला? नहीं बोलना चाहिए ना अब्दुल शैतान को बीच में। मुझे मालूम है कि तुम शैतान को सलाम करके साथ में लाए हो, शैतान को उसको सलाम भी कर रहे हो। सलाम कर लेना, बाद में मालूम है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बीच में बोलेगा। शैतान को बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। हम आदम की औलाद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती। हम शैतान की बात नहीं सुनेंगे। चलो बात करो, चलो सुनाओ। 5 मिनट बिल्कुल चुप रहना। मैंने तुमसे एक मिनट, मैंने तुमसे ये कहा, मैंने आपसे ये कहा कि आप अब्दुल शैतान को खामोश करें, तो आप खामोश क्यों नहीं किए उसको? आपका भी शैतान खामोश हो गया है ना, आप चुप हो जाइए। तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं उसको? चुप करवाइए उसको। खामोश हो जाइए। अब खामोश हो जाए। हाँ बीच में बोलता है बिला वजह। चलिए 5 मिनट शुरू करिए। ठीक है, 5 मिनट खामोश रहिए। सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सामईन, मैं ये जो बरेलवी बाजू वाला ही भाग गया होगा, जवाब दे रहा हूँ। खामोश रहिएगा, प्लीज आप खामोश रहिए, ठीक है? खामोशी के साथ, ठीक है? सुनाइए। तो सामईन, ये लोग इस इबारत को लेके हमारे पर इल्जाम लगाते हैं। अरे इल्जाम नहीं, खुली हुई इबारत है यार। इबारत की बात करो ना यार।
चुप करोगे, क्यों बोल रहे हो आप? तो इबारत पर बात करो ना। जो लोग इल्जाम लगाते हैं, अरे खुली हुई किताब तुम्हारे सामने रख दी हो, तुम कह रहे इल्जाम लगाते हैं, यानी चोर की चोरी सामने खोल दी हो, कह रहे इल्जाम लगाते, इल्जाम है ये? आप कुछ कहो ना, हकीकत है ये, हकीकत। चलो बताओ, बोलो। खामोश ही हूँ, लेकिन तुम बिना वजह की बात मत करो, यहाँ बताओ। अब्दुर्रहमान साहब, मैं सामीन मैं कह रहा हूँ, अब मैंने से 5 मिनट का वक्त मांगा, अब अगर वजाहत करिए, वजाहत करिए, वजाहत करिए, बिना वजह की बात ना करिए, खींचिए मत। चला जाऊँ क्योंकि वक्त ऑलरेडी नहीं भागेंगे आप, नहीं भागेंगे नहीं आप, नहीं भागेंगे नहीं आप। आपने कहा कि रात भर बात करूंगा, आपको घर से निकाल दिया गया है, आप भागेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब सुनिए, 5 मिनट खामोश हो जाएगा वरना आप। हाँ सुनाइए, अरे सुनाइए। शिकस्त तुम्हारे जिंदगी में कोई नहीं दे सकता। एतराज करते हैं, चुप तो करोगे? इस इबारत को लेकर ये लोग एतराज करते हैं। अब चाहे तो इसे इल्जाम कह लें या ये कह लें कि इनकी समझ में आज तक ये इबारत नहीं आई है। इस इबारत का सही मतलब तुम समझा दो ना, तुम्हारी समझ में आई तो तुम समझाओ, समझाओ जल्दी। बेवकूफ कहीं के बोले तो उनको क्यों समझाना, हमको समझाओ ना। घंटा हो गया, उधर क्यों घुस रहे हो? तैयार नहीं हो रहा, बेवकूफ कहीं का। चिल्ला क्यों ना इधर उधर है, बिना मुझे इधर उधर घुसे हो क्यों? फिर नहीं रहते, सुन फिर आराम। चैलेंज करते हो और जवाब नहीं देते हो, जवाब देने के टाइम पर इधर उधर भागते हो। बात करो ना, क्या सुन करिए भाई, तेरे से कह रहा हूँ। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, यहाँ पर जवाब दो, जवाब दो। चलो सुन आराम से फिर। हाँ सुनाओ। अरे सुन नहीं बोलना, सुन नहीं बोलना, नहीं तो फिर मैं बदतमीजी पर आऊंगा ना, तो फिर सोचोगे कि क्या हो रहा है। आराम से, खामोश क्यों नहीं हो रहे हो आप? आपके अंदर असल। हाँ ऐसे बोलो, हाँ ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। बड़ा हूँ तुमसे, अदब किया करो मेरा, उम्र में भी बड़ा हूँ। चलो बोलो। अब बिल्कुल मत बोलना बीच में, जो मैं बोल रहा हूँ बोल देना, जब मैं खामोश रहूंगा तब बोल देना। चलो बोलना, बोलो, ठीक है। उसमें बोलना बीच में, अगर तुमने बोला तो बस बात यहीं पे डिस्कनेक्ट हो जाए, खत्म हो जाएगा। तुम बीच में कुछ, अरे तुम तो भागने का बहाना ढूंढ रहे हो बहुत देर से। तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ यहाँ पर मैं। अरे भागने का बहाना है तुम्हारा ही, अब तो भागोगे, मुझे मालूम है। चलो बोलो। मैं 5 मिनट अगर बीच में बोलना मत बिल्कुल। तुम भागने का बहाना ढूंढ रहे हो, मुझे मालूम है तुम भागोगे, तुम्हारा हर मौलवी ऐसे ही भागता है। चलो बताओ, बोलो। करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, झूठा इल्जाम लगाते हैं कि इल्जाम नहीं है, खुली हकीकत है। फिर बोला तू यार, फिर बोलते हो तुम। अरे खुली हकीकत तो तुम इल्जाम बोल रहे हो यार। 5 मिनट के बाद बोल लेना, 5 मिनट अपने मुंह पे जुबान पर ताला लगा लो 5 मिनट। तो लेकिन खुली हकीकत पे इल्जाम कैसे बोलोगे? आप बोलोगे जो हमारी किताब में लिखा हुआ है, ये लोग जो बताते हैं इसका माना ये नहीं है, ये ऐसा बोलिए। खामोश मुनाजिर का तरीका पता क्या होता है? अगर 5 मिनट बोला जाएगा तो खामोश होगा 5। चलो बोलो 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 बोलो, ठीक है, बोलो बोलो। इबारत के जरिए से ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, या यूं कहो कि आज तक उलमा तो गलत फहमी करते। आवाज ही नहीं आ रही, कट करके आ रही है आप लोग। ठीक है, अब मैं आपको पूरी इबारत पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ज़ैद नाम में जो शख्स था, उसके जरिए से सवाल किया गया था वहाँ शख्स कि वो पाक उलूम ग़ैबिय्या की वजह से नबी आपको आवाज आ रही है इस्राइल भाई? नहीं हजरत, आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट रही है, बहुत कट रही है। अब्दुर्रहमान साहब आवाज आ रही? आवाज उनसे क्या मतलब आ रही है, नहीं आ रही है? अरे यार अब्दुर्रहमान भाई हमसे बात कर रहे हो, अब्दुर्रहमान से बात कर रहे हो यार? तो मैंने से पूछोगे, अरे तो अल्लाह के बंदे यहाँ पर, अरे तो यहाँ आवाज नहीं आएगी तो कैसे समझ में आएगा लोगों के? बताओ ना। नेटवर्क में निकल जाओ ना बाहर को। हम तो नेटवर्क में है ना यार, हम तो नेटवर्क में। तुम पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हो, रोड पर घूमते रहते हो, इधर उधर कहीं भी चले जाते हो। रोड पर तुम जो है तो टावर ढूंढो, कहीं पर टावर के नीचे खड़े हो जाओ आकर के, क्योंकि रोड पर तो हो तुम। ये देखिए तो सामीन बयान किया गया था इसमें कि ज़ैद जो ये कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है कि वो ये कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे देखो जो तुम्हारी आवाज, सुनो सुनो फैजान, तुम्हारी जो आवाज नहीं आएगी ना, फिर बाद में एतराज मत करना कि हमारी आवाज नहीं आई, क्योंकि आवाज यहाँ पर क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो रही है ना। बोलते जाओ, ठीक है बोलते जाएगी। बाद में तुम एतराज करोगे कि आवाज काट दी, तो आवाज काटी नहीं है, ये आवाज क्लियर नहीं हो रही तुम्हारी, है ना? जी जी, घर पे जाता हूँ जी भाई, ऑलरेडी 1-1.25 घंटा हो चुका है। हाँ, और अभी तक आपने इबारत पर बात ही नहीं करी, इधर उधर ही भागते रहे आप। 1-1.25 घंटे तक आप इधर उधर भागते रहे। मैं इबारत ही पढ़ रहा हूँ। इबारत पर बात कर लेते तो अभी तक मसला हल हो जाता, लेकिन आप इंतजार खत्म नहीं करना चाहते हैं, आप इंतजार बनाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। तो कुछ पढ़ूंगा ना मैं। तो तुम जब पढ़ रहे हो आवाज क्यों नहीं आ रही है? तुम कहाँ घुस जा रहे हो? घर से बाहर निकलो ना भाई, तुम निकलो ना घर से बाहर अपने। अरे मैं घर के बाहर ही, अभी तो आवाज आ रही है सारी, इबारत पढ़ो तभी ऐसा हो रहा है। तुम्हारे वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। 15,000 स्क्वायर फीट नेटवर्क हमारे यहाँ बेहतरीन है, अच्छी आवाज आ रही है सारी।
फिर बोले ये देखो अब्दुल रहमान को फिर मना करो, फिर मैं बोलूंगा, फिर मैं गलत बात है नहीं, मत बोलिए ना यार। अरे मैंने नहीं बोला, तेरे राहिल खान ने बोला, कानों में से डाल दिया है क्या? अब तो बोला आयतल कुर्सी पढ़ देंगे, देखो आप गलत लफ्ज बोलोगे ना, देखो अब्दुल शैतान गलत अंदाज में बोलोगे ना तो फिर मैं बहुत गलत बोलूंगा तुम्हें, ठीक है? अरे तेरी नस्ल ही आला कुत्ते की है, तू नस्ल ही बोलेगा। ये देखो फैजान देख ले, फैजान देख ले इसको, फैजान देख ले इसको, फैजान देख ले इसको, फैजान देख ले इसको, भागने का तरीका ढूंढ रहा है ये। ऐसी बात ना, हाँ मैं ये भागने का तरीका ढूंढ रहा है। इसका मुंह में, इसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूस देना तू। जाहिल मजबूर कपड़ा क्यों नहीं ठूसता? बार बार बोलता है ये हाथ कर काम, इसके मुंह में कपड़ा ठूस, कहना सुनने का काम क्या? सुन, जब तेरे पे सवाल का जवाब नहीं सुना जा रहा तो तू भाग रहा है, तू बदतमीजी को कर रहा है। जब हमने अरे तो ये बदतमीजी कर रहा है ना, कितनी देर से तुझे मना कर रहा हूँ कि इसको खामोश करवा, तू बोलता क्यों नहीं इसको खामोश करने के लिए? मरदूद इंसान कहीं के, ये वकूफ कहीं का, जाहिल कहीं के, बदतमीज बेगैरत इंसान। बदतमीज इंसान, जाहिल, जरा अपनी जुबान पे लगा दो वरना पैर के नीचे मसल देंगे। इतनी देर से वो बोल रहा है, उसके मुंह में कपड़ा ठूस, उसको बिठा हाथ कर बांध करके, जबान के सारे टेस्ट बड मर जाएंगे, मीठे खट्टे का टेस्ट नहीं आएगा। मरदूदो दो होकर के आते हुए, एक खानवी और एक गंगोई और नानोत्वी। ये नानोत्वी को साथ में लाया कि गंगोई को साथ लाया? किसको लाया साथ में है? और तू नानोत्वी है कि गंगोई है? कौन सा अमल करता है? लूटी है तुम लोग, बेहया कहीं का, बेवकूफ, बात करता नहीं, इधर उधर कही जाता है, बीच में बोला जाता है अब्दुल शैतान। वो अब्दुल शैतान अगर यहाँ सामने होता ना, हकीकत कह रहा हूँ, उसके पिछवाड़े को लाल कर देता मार मार के। इधर सामने अगर हिम्मत है सामने आ। अरे चुप रहे, कहाँ रहता है तू बताओ? सामने आ। हाँ चल, तू सामने आ। कहाँ पर है? चला, कहाँ पर बुला रहे? बेंगलुरु आ जा। हाँ बेंगलुरु में हूँ, अगर दम है तो सामने अशफाक। हाँ तो चल, तू जो है तो मेरा क्या बोलते, जो टिकट करवा कल से, चल आधार कार्ड भेज अपना एड्रेस का, वोटर आईडी कार्ड की कॉपी भेज, तेरा एड्रेस भेज, टिकट करवा, तेरा एड्रेस भेज, तेरा मेरा टिकट करवा, मेरी जरूरत पूरी कर, रहने का इंतजाम करा रहा हूँ मैं। हाँ कर करवा, कल की करवा। फैजान इसको चुप करवाओ, मौलवी में बात करो, फैजान को चुप कराओ, बीच में बात करो, इसका मुंह बंद करवा। अभी इसका अब्दुल शैतान होगा, अब्दुल शैतान लगातार बोला चला जा रहा है। अब्दुल शैतान, तू शैतान को सलाम करता होगा, शैतान को साथ में लेकर आया है, ये हया कहीं का गधा। बात कर इधर से, चलो फैजान स्टार्ट, फैजान स्टार्ट। अबे धमकी किसी और को देना बेटा, तेरे जैसे न जाने कितने देखे। चल तू हमें धमकी दे रहा है, तेरी आवाज देखने कैसी लग रही है, बिल्कुल गंगोई की तरह, नानोत्वी की तरह, बिल्कुल जनानी आवाज है, नानोत्वी की तरह तो आवाज है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? फैजान को तेरा मामला टाका बुला हुआ है, तुझे जैसे गंगोई और नानोत्वी का टाका बुला हुआ है, ऐसे कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या किया तूने? अबे उमेर, अबे वो कादिया क्या बात करेगा, ऐसे भागा वो भी, तू भी ऐसे भाग रहा है। भाग मत, बात करनी है कि नहीं? बात कर, भाग मत फैजान, भागना नहीं। चलो फैजान स्टार्ट करो। अबे चल बे, क्या स्टार्ट करूँ? तेरे से घंटे से कहा के जा रहा हूँ, हजरत इसको भागने का बहाना मिल गया, खामोश हो जा। भागने का बहाना मिल गया है, फैजान को भागने का बहाना मिल चुका है, फैजान को भागने का बहाना मिल चुका है, फैजान भागने के बहाने ढूंढ रहा है। बहुत तबीयत से ठुकाई हुई है, आज मजा आ गया बाखुदा। फैजान भागने का बहाना ढूंढ रहा है। ठीक है 5 मिनट खामोश रहेगा, मैं भी इबारत पढ़ रहा हूँ। फैजान मैं खामोश रहूंगा, सुन। अच्छा एक मिनट, हाँ बिल्कुल मैं खामोश रहूंगा, पहले मेरी बात सुन। मैं खामोश रहूंगा, पहले मेरी बात सुन। मैं खामोश रहूंगा, मेरी बात सुन। नहीं, मेरी बात सुनना पड़ेगी, फिर खामोश रहूंगा। पहले मेरी बात सुन। तू अब्दुल शैतान के मुंह में कपड़ा ठूस, उसके हाथ पैर बांध, उसको खामोश कर, फिर बात कर। तो अपनी गंदी जुबान बंद कर ले। अब्दुल शैतान के मुंह में कपड़ा ठूस, कपड़ा नहीं हो तो कुछ और ठूस दे। अबे गंदी जुबान बंद कर। वैसे भी जनाना ही दिख रहा है, वो एक नंबर का नानोत्वी दिख रहा है वो। अगर तू मुनाजिर है, हाँ अगर तू मुनाजिर, गंगोई नानोत्वी का दोनों आ गए यहाँ पर नाना है। 5 मिनट चल सुना, चल फैजान, चल सुना, फैजान सुना, चलो फैजान बोलो, चल फैजान बोलो, फैजान बोलो, चुप रहना, फैजान बोलो। ठीक है? हाँ बोलो। मैं अभी 3 मिनट में सिर्फ 5 सफा कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल। हाँ फैजान बोलो, बिल्कुल भागा नहीं फैजान बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, इस इबारत को लेकर इनके मौलवियों ने अब तक हमारे ऊपर सिर्फ झूठे इल्जाम लगाए हैं, और उसकी वजह यह है, आपने देख भी लिया कि इन लोगों को आज तक हमारी इबारत का सही मतलब समझ में ही नहीं आया है।
ये सब फालतू बातें कर रहे हो तुम, ये फालतू बातें कर रहे हो। जवाब पे तो ये फालतू बातें कर रहे हो ना, मैं ऐसा बोलूंगा तो आप सुनोगे? तू बहुत बड़ा बेगैरत इंसान है यार। मैं ऐसा बोलूंगा तो आप सुनोगे? क्यों सुनोगे आप? तो आप बात करो ना, आप मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हो? आप कह रहे समझ में नहीं आया, समझा दिया हमने अच्छी तरह से। चुप हो जाना, क्यों बोले जा रहा है? चुप हो जाना, तो जैसे मुझको कह रहे चुप हो जाना, ऐसे उसको कह देना चुप हो जाना। तलब कर रहे हैं तो वजाहत नहीं देता, अब यहाँ बकचोदी करे जा रहा है बीच में, बोल गाड़ी पकड़ा है, गाड़ी पकड़ा है, गाड़ी पकड़ा है, गाड़ी पकड़ा है, गाड़ी पर आ गया, भागा, गाड़ी पर आ गया, गाड़ी पे आ गया। देख के सामने ये है मुनाजिर। नहीं ये लो भाई, गाड़ी पकड़ा है। अब्दुर्रहमान चुप हो जाए ढक्कन। इसको चुप करो यार, अब्दुर्रहमान को इसको यहाँ कुर्सी पढ़ के दम कर दें, शैतान अभी जाया हो जाएगा। हाँ यार, शैतान को तकलीफ होती है ना, कुरान हदीस तकलीफ होती है, शैतान खुद को माना हुआ। अबे तो ये कुरान हदीस पढ़ रहा है तू, गाड़ी पक रहा है, कुरान हदीस से मादलना है। अबे सुने भाई, सुन चुप कर, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, पिछले आधे घंटे से गाली पक रहा है और कह रहा जवाब दे रहा हूँ। कौन बकचोदी करना कौन सा गलत है? अबे गाली है ना, अबे गाली है ना, ये गाली है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अबे यार कैसा बेवली है, कभी शैतान को सलाम करता है, कभी मतलब माशाल्लाह शैतान को अच्छा हुआ देखता है, कभी गाली देता है और गाली को कहता है गाली नहीं है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं है ना हमारे, अरे यार बकचोदिया बोलना गाली नहीं है। अच्छा, मतलब तुम अपने अम्मा अब्बा से भी यही बोलते हो भाई? और से आम देखा जाएगा, और से आम में तो गाली है ये। अरे तुम्हारा उर्फ़े आम वहाँ है, अपने अम्मा अब्बा से भी यही कहते हो? तुम्हारे अब्बा तुमको किसी काम के लिए बुला रहे हो तो तुम कहते हो यही लफ्ज बोलते हो? भाई तू अपने पास, ये देखिए फिर ये भी शुरू हुआ। देखो अब्दुल शैतान को खामोश कर, ये अब्दुल शैतान को खामोश करे यार, तुमने इसकी तुम पे कई मरतबा पैर रखा है ना हज़रत, तो ये हमसे चिढ़ा हुआ है। हाँ, ये अब्दुल शैतान की खामोश करो यार, अब्दुल शैतान खामोश रहे यार। अब्दुल शैतान तेरे से बाद में बात करूंगा मैं, अब्दुल शैतान को एक दिन दूसरे दिन कॉल पर लेंगे, बात करेंगे, लेकिन अब्दुल शैतान करेगा मेरे से, तू डर गया है, मर गया है। अब्दुल शैतान से बाद में बात करेंगे। अब्दुल शैतान तेरे से बाद में बात करेंगे, अब्दुल शैतान तेरे से कल बात करेंगे, अरे बाद में बात करेंगे, फिर बात कर लेंगे। अब्दुल शैतान तेरे से बाद में बात कर लेंगे, अब्दुल शैतान तेरे से बाद में बात करेंगे। इसको चुप कराओगे भैया कि नहीं? यार फैजान चुप नहीं करवा रहे यार, फैजान चुप नहीं करवा रहे। अच्छा हैरत की बात है कि अब्दुल शैतान बोलता है ना, फैजान एकदम चुप हो जाता है। चुप हो जाता है। चुप क्यों नहीं होगा? नानोतवी को देखकर गंगोई चुप तो होती होता है। तुमसे मैं वक्त तय करा रहा हूँ, नानोतवी बोलेगा तो गंगोई कैसे बोल पाएगा कि चुप हो जाओ बेगम? तेरे को जवाब सुनना है या नहीं सुनना? चलो बोलो रेडी। जवाब सुनना है, बोलो स्टार्ट। सुनाओ। बीच में अब तुम अब्दुल शैतान को खामोश करना है यार, फिर बोलता है, बीच में बोले जाता है मार। ठीक है, अब चुप रहना। तो बोलता तो है यार, तुमने इतनी देर की रिकॉर्डिंग में एक बार भी ये नहीं कहा कि अब्दुल शैतान खामोश हो जाओ, तुमने नहीं कहा। तब मैं बोलूंगा, मैंने राहिल खान बोला, जब बात कर चुके हो, मेरा 1.5 घंटा। राहिल खान, हाँ राहिल खान जो बोल रहे हैं, राहिल खान वो मुझसे बोल रहे हैं जो भी बोलना है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? क्यों बोल रहा है भाई? तुम कौन हो? तुमसे तो बात ही नहीं हुई। अरे तू होता कौन है बोलने वाला, जब तेरा नाम ही कहीं से नहीं था, जबरदस्ती पैदा हो गया यार। जबरदस्ती मतलब जो है तो जोजा को साथ ले आए तुम, क्या जोजा को साथ ले आए जबरदस्ती। सुन बोलो। अबे तेरा राहिल जो इतना वाला झूठा है, कल तू यहाँ पे था नहीं, तू कहीं लिंक पर नहीं था। तेरा अब्दुल्ला कह रहा है कि तू कल कहीं गया हुआ था, और राहिल कह रहा है कि तू कल क्यों नहीं आया था भाई 10 बजे? चल मैंने SMS पे बोल दिया था, इबारत पे बात कर, बहाने ना बना। इबारत पे बात कर, बहाने ना बना। ठीक है, इबारत पढ़ रहा हूँ, सुन। चल इबारत पढ़ो। अब अगर 5 मिनट से पहले बोला ना तो तेरी हार शिकस्त साबित हो जाएगी। ठीक है, जबरदस्ती हो जाएगी। कौन से कहाँ कानून में लिखा है? जबरदस्ती हार हो जाएगी, ये तो पता लग रहा है लोगों को किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई। हार हो जाएगी, जबरदस्ती अपने आप को मुनासिब मान लेगा। ये 5 मिनट का वक्त नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि 5 मिनट के अंदर ही इसको चांद नजर आने वाले हैं। अब मैं इबारत पर आता हूँ, इबारत को बात करता हूँ, मैं आपको इबारत बता देता हूँ। इबारत सिंपल सी बात यह है कि ज़ैद के आखिर ये था कि वो बाज़ उलूम गैबिया की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा था। तो इसकी नफी करते हुए मौलाना शफी थानवी साहब ने जवाब दिया है कि अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं, यानी बाज़ उलूम गैब की वजह से वो ज़ैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह रहा है, तो इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म तो यानी बाज़ इल्म गैब तो चुप रहे, माज़अल्लाह मत बोल। तेरी किताबों से तू मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करे, माज़अल्लाह नहीं बोलूंगा। चल पढ़ तू। जाहिल चुप रहेगा तू, बहुत बड़ा माज़अल्लाह बोल रहा हूँ ना। चल ठीक है, माज़अल्लाह। अबे तो माज़अल्लाह बोल रहा, तुझे कुछ थोड़ी बोल रहा हूँ, तू पढ़ना बोल। चुप, मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, माज़अल्लाह नहीं बोलूँ। तो फिर आगे थानवी साहब ने लिखा है
आगे लिखा है कि ऐसा इल्म गैब तो यानी बाज मुतलक कैसा, मैं पूछना चाहूंगा कैसा, क्या क्या कहना चाह रहा है, कितना, मैं पूछना चाहूंगा कैसा इल्म गैब, ऐसा इल्म गैब से मुराद कैसा इल्म गैब, तशबीह पर बात चल रही है या बात कैसा इल्म गैब, कैसा इल्म गैब ये बता। कैसा कहाँ से लेके लफ्ज कैसा है कहाँ इसमें लफ्ज, ये अभी तो तूने बोला कि ऐसा, मैंने कहा हमें मैं पूछ रहा हूँ ना, तूने बोला ऐसा इल्म गैब, तो मैं पूछ रहा हूँ कैसा इल्म गैब। अच्छा ऐसा इल्म गैब से क्या मुराद, ऐसा इल्म गैब से क्या मुराद, कैसा इल्म गैब, ऐसा से यानी बाज मुतलक उलूम गैबिया, ऐसा से मुराद बाज मुतलक उलूम गैबिया, समझ लिया, ऐसा इल्म गैब बाज मुतलक उलूम गैबिया ज़ैद व अम्र को भी है, समझ लिया। हाँ अरे बाज मुतलक इल्म उलूम गैबिया ज़ैद व अम्र को भी है, ऐसा से मुराद ये है। हाँ हाँ ऐसा से मुराद ये है, ऐसा से मुराद बाज मुतलक उलूम गैबिया, जी मुतलक उलूम गैबिया, अच्छा मुतलक उलूम गैबिया, क्योंकि बाज इल्म गैब पर ही बात चल रही है, किसको बाज उलूम ऐसा इल्म गैब, ज़ैद उमर बकर और बहाइम यानी जानवरों को भी है, ठीक है। ये ज़ैद कौन है, तो ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद उमर, ये सवाल करने वाला जो ज़ैद आया था वही है पागल, बल्कि जमी हयानात, अरे ये जो सवाल करने वाला ज़ैद आया था ये वही ज़ैद है, किसी न किसी, क्योंकि हर शख्स को किसी न किसी ऐसी बात का इल्म होता है जो दूसरे शख्स से छुपा हुआ होता है। तो साबित ये हुआ कि अगर बाज़ उलूम गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है तो मुतलक कुछ न कुछ इल्म गैब तो हर इंसान को है। तो फिर ज़ैद के अकीदे के मुताबिक चाहिए कि सबको आलिमुल गैब कहा जाए और कुछ ना कुछ इल्म गैब। एक मिनट फैजान लाजिम आएगा जिसकी नफी की है। तो अब सामीन हो गई बात को बदलते हुए हो गई बात अभी नहीं हुई अभी नहीं हुई क्यों बोल रहा है भाई? सुना मेरी बात ही खराब कर दी बीच में बोल के, जब मैं बोल रहा हूँ सुनाना तूने सारी बात खराब कर दी बीच में बोल के। अबे सुनाना यार, क्यों खराब कर दी? क्या मैंने, अबे तू क्या बोलते चावल चुन रहा था क्या जो मैंने मिला दिया दोनों? सुनाऊंगा मैं यार, कुछ भी बातें करता है, बात खराब कर दी। चावल चुन रहा था जो मिला दिया मैंने। मैं तेरे को इबारत से पढ़ के बता रहा हूँ। तो सामने अबे कहीं अबे नालायक, तू मुझे खबीस बोल रहा है। अभी तूने सलाम किया मुझे, अभी तूने सलाम किया मुझे। अभी इबारत की बात तो फिर इबारत पर आना, तो भूल कैसे गया? क्या मैंने चावल मिला दिए थे क्या पूरे? हाँ, मैं तो इबारत ही बता रहा हूँ। तो मैंने बच्चों वजाहत कर दी। सामीन आपने क्या वजाहत कर दी? इसमें क्या वजाहत कर दी? मैं आ रहा हूँ ना वापस। हाँ, क्या वजाहत करी? गुलाम लगाऊंगा 12 वजाहत करूंगा तेरे सामने में, ये बता। अरे तो भाई वजाहत तो, अरे भाई बाप का गुलाम, किसी का ईमान बचाना है ना तुझे। मैंने वजाहत, तो तबलीग करता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच चुका है जिसका ईमान। तो तबलीग कर रहा है ना, तू चल ईमान बचाना, बोलना, समझाना, बाप को नौकर और ये इस तरह की जुमले इस्तेमाल कर रहा है। भाग रहे हो? राहिल भाई भाग गया जी, राहिल भाई भाग गया जी इबारत पर बात ही नहीं किया, कोई सवाल नहीं, भाग गया जी हजरत, भाग गया बंद कर दिया। यहीं पर मौजूद हूँ, अभी यहीं पर मौजूद हूँ मैं। देखिए झूठ बोल रहा है, कहाँ पर मौजूद हो? बाहर या मतलब घर में मौजूद? अभी मैं अच्छा चल सुना। हाँ तो सुना ना, मैं कम मना कर रहा हूँ यार। सलमान भाई मैंने पढ़ करके बता दी, ठीक है ना? अब मैं बोलूँ? पढ़ करके बता देता हूँ। अब मैं बोलूँ भाई तुम्हारा? अरे तो भाई तूने बोल दिया, पढ़कर बता दिया, मुझे बोलने तो दे। बोल के, अरे भाई मैं ही तो बोलूंगा ना, मुझे एतराज है ना उस पर। अरे मुझे एतराज है ना उस पर, मैं बोलूंगा ना। अरे भाई तूने एतराज था, तुमने इबारत पढ़ दी, ठीक है? तूने जो पढ़ा मुझे उस पर एतराज है, तूने जो पढ़ा मुझे उस पर एतराज है। वो गलत इबारत पढ़ी तूने, गलत बात पढ़ी। कहाँ गलत इबारत पढ़ी मैंने? हाँ तो बोलने देना, बात कर रहा हूँ ना मैं तो, सुन तू बोलने तो दे नहीं दिया तू। चल अब गलत साबित कर दे। हाँ मैं गलत साबित करूंगा ना। मैं बता रहा हूँ कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है। कैसे गुस्ताखी है, इस बात की वजाहत कर। हाँ यही मैं साबित कर रहा हूँ। उसने कहा कि वो थानवी साहब ने, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने कहा कि बाज उलूम गैबिया मुराद, अगर इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब, अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई खासियत नहीं है। वो कह रहा है बाज उलूम गैबिया में ऐसा इल्म गैब, ऐसा इल्म गैब है ना। मिसाल देकर समझा रहा हूँ मैं ताकि सामीन भी समझ ले, है ना? ठीक है, मैं भी मिसाल देकर समझा रहा हूँ ताकि सामीन समझ ले। ठीक यार देखो, एक मिनट सुन लो चुपचाप, है ना? हाँ मिसाल देकर समझा रहा हूँ ताकि सामीन समझ ले। चुपचाप यार सुन तो लो यार, फालतू बातें मत करो ना। मिसाल देकर समझा रहा हूँ। दरियाफ्त है कि ज़ैद कहे हजरत इस्माइल दहलवी व जनाब गंगोही व जनाब नानोती व जनाब थानवी साहिबान हर एक साहिब बेनज़ीर है।
इस पर कोई बेबाक बोल उठे कि अगर बेनजीर से ये मुराद है कि ये लोग माज़अल्लाह अल्लाह की तरह वाहदहू ला शरीक है, जब तो इसका बुतलान दलील अक़ली व नक़ली से जाहिर, और अगर ये मुराद के उनमें से हर एक के पीछे सुन ले यार सुन तो सही यार, मैं वो दे रहा हूँ ना, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ बेटा, अरे जवाब तेरी इबारत पढ़ रहे हैं ना, अब ये जवाब है। अरे भाई उस इबारत का जवाब दे रहा हूँ मैं, तू कह रहा ना कि उसमें गुस्ताखी नहीं है, मैं गुस्ताखी बता रहा हूँ, मिसाल दे करके, सामने मिसाल समझिए। अरे भाई गुस्ताखी बता रहा हूँ ना, वही तो मिसाल से समझ में आ जाएगा ना, मिसाल से समझ में आ जाएगा ना, वही तो कह रहा हूँ यार, तो सुनो तो सही। लिहाजा और दरियाफ्त है कि जैद कहे हजरत इस्माइल दहली और जनाबी गंगोई और जनाबी नानोतवी व जनाबी थानवी साहिबान हर एक साहिब बेनजीर है। इस पर अगर कोई बेबाक बोल उठे कि अगर बेनजीर से ये मुराद के ये लोग माज़अल्लाह अल्लाह की तरह वाहदहू ला शरीक लहू है, जब तो इसका बुतलान दलील अक़ली व नक़ली से जाहिर है, और अगर ये मुराद के उनमें से हर एक के पीछे दफ़े निजासत का एक एक रास्ता है, तो इसमें उनकी क्या तख्तीस है? ऐसा सुराख तो हर कुत्ते सूवर के होता है, तो चाहिए कि सबको बेनजीर कहा जाए। फिर अगर जैद इसका इंतजाम करे कि हाँ मैं हर कुत्ते सूवर को भी बेनजीर कहूंगा, तो बेनजीर कहने में इन साहिबों का क्या कमाल हुआ जिसमें कुत्ते सूवर तक शरीक है। और अगर इंतजाम न किया जाए तो जनाब इस्माइल दहलवी, गंगोई, नानोतवी, थानवी और कुत्ते सूवर में वजह फर्क बयान करना जरूर है। बात समझ में आई? हेलो, समझा दी इसकी वजाहत। गुस्ताखी समझ में आई? गुस्ताखी समझ में आई? अगर कोई आदमी इस तरह बोले, अच्छा अगर कोई आदमी इस तरह बोले तो आपके थानवी साहब को सुराख है कि नहीं है? अरे यार एक मिनट, कोई आदमी अगर इस तरह बोले तो आपके थानवी साहब, गंगोई साहब, नानोतवी साहब, अम्बेडवी साहब, इस्माइल दहलवी साहब को ये सुराख है कि नहीं पीछे, जैसे कुत्ते सुअर बिल्ली को होता है? फिर आगे बोलो, है कि नहीं, सुराख है कि नहीं? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यही बोली जब इस तरह बोली जाएगी तो ये बोली तेरे मौलवियों के नजदीक, ये तुम्हारे नजदीक अपने मौलवियों के सामने गुस्ताखी होगी। और यही बोली जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम लोग बोल रहे हो तो तुम्हें गुस्ताखी नजर नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? हो गया हाँ हो गया। अभी क्या हुआ? होएगा तो नाम रखने के लिए बुलाएंगे। हो गया ना? अरे बुलाएंगे ना नाम रखने के लिए जब होएगा तो। अभी नहीं हुआ। ठीक है। वैसे जब बुलाएंगे दावत देकर। ठीक है, अब मैंने चुपचाप सुनी है तुम्हारी बात। हाँ बिल्कुल सुनी, मेरी बात सुनना। सुनाओ। ठीक है सामीन, इन लोगों का काम सिर्फ बातों को घुमाना होता है, सिंपल और सादी सी बात जो मैंने जितनी बात करी तो मैंने डायरेक्ट बात करी, सामीन नहीं करा। मैं खामोश रहा था ना, बस खामोश रहे बिल्कुल भाई। ठीक है, तो सामीन, इन लोगों का काम सिर्फ सीधी सादी इबारत को गलत तरीके से घुमा फिरा करके बना करके पेश करना और अवाम को बलगलाना का मकसद होता है। इस इबारत का सीधा साधा सा मकसद ये है, पहले तंबीहन बात कर दूं कि हर शख्स को किसी न किसी गैब का इल्म है, जन्नत और जहन्नम गैब के अंदर है और हम सबको मालूम है। ठीक है, यानी हमको भी गैब का इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पहुंचा। ठीक है, चलिए माशाल्लाह, आज गैब तो मान लिया आपने, ये बड़ी बात है। ठीक है, अभी सुन लीजिएगा। ठीक है, अब ज़ैद का अकीदा ये है कि वो ये कहता है कि बाज़ उलूम गैबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बाज़ इल्म दिया। कितना इल्म दिया इस पर हमारी कोई बहस नहीं है, ना ही ये कोई जानता है। ठीक है, लेकिन अल्लाह का इल्म वो जाती है और हुजूर को अल्लाह ने मुत्तला किया है बज़रिए वही, तो लेकिन है बाज़, कुल नहीं है। तो बाज़ उलूम गैबिया की वजह से ज़ैद जो है वो आलिमुल गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है, जबकि आलिमुल गैब का इतलाक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आलिया पर होता है। ये कहाँ लिखा है? इबारत में? ये कहाँ लिखा है? इबारत में वजाहत कर रहा हूँ ना, सुन लो ना चुप करके। इबारत में कहाँ लिखा है? इबारत आप पढ़ो ना, वजाहत कैसे कर रहे हो? कुछ भी खुलासे कलाम कर रहा हूँ ना, तो इबारत में वहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा, ये खुलासा कलाम थानवी साहब कहाँ लिखे? बोल रहे हो फिर? एक मिनट, ये खुलासा कलाम जो आप कर रहे हैं थानवी साहब किए नहीं कर? बिल्कुल, थानवी साहब ने आगे बस्तुल बनान के अंदर बिल्कुल क्या खुलासा है? यही खुलासा कलाम किया जो आपने किया है? ये किया है थानवी साहब ने अपनी जो इल्जाम तुमने लगाया उससे बिल्कुल रुजू। ये खुलासा कलाम जो आप अपनी तरफ से कर रहे हैं थानवी साहब ने किया है क्या? मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। तो फिर खुलासा कलाम थानवी साहब तो किए नहीं, तो आप कैसे कर रहे हैं? मैंने क्या कहा? तंबीहन पहले बताऊं ताकि आगे की बात समझ में आ जाए।
समझ गई, मैंने बोला है, सुन ली प्रोफेल अच्छे तरीके से कि आलिमुल गैब का इतलाक तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला पर होता है। अगर मज़हबिया की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलिमुल गैब कहेंगे तो फिर तो इस तरीके से हर शख्स को किसी न किसी गैब की बात का इल्म है, तो फिर ज़ैद के मुताबिक तो ज़ैद, उमर, बकर वगैरह को भी आलिमुल गैब कहा जाएगा, और पहाड़ी यानी चींटी को भी बारिश आने का इल्म पहले हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, मेरा सवाल है इस चुप पर। रहेंगे आप? चुप रहेंगे आप अभी? ठीक है ना, बोले बिल्कुल बात खराब ना क्या करें, ठीक है ना। चलो तुम्हारे चावल भी मिलाऊंगा मैं। को भी बाज इल्म गैब है, तो फिर ज़ैद के मुताबिक तो चाहिए कि चींटी को भी आलिमुल गैब कहे, ठीक है ना। ज़ैद, उमर, बकर और जितने भी हैं हम सबको भी आलिमुल गैब कहा जाए। तो जब ज़ैद के आलिमुल गैब सबको कहेगा तो इससे एक फसाद लाजिम आ जाएगा। फसाद ये लाजिम आएगा कि आदमी मुखालते में पड़ जाएगा कि आलिमुल गैब अल्लाह है या नहीं, इस तरीके से बहुत सारे फसाद लाजिम आएंगे। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसमें हुजूर ही की क्या तख्सीस है, ऐसा इल्म यानी इतना इल्म, यानी बाज़ उलूम गैबिय्या तो कितना इल्म भी है। एक मिनट कितना इल्म? इतना इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जितना है उतना ऐसा इल्म, उतना बात सुनो, इतना यानी इतना बोला ना आपने, यानी इतना इल्म, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना इल्म है आपने कहा ना इतना इल्म। तुम यहाँ से ये जी ऐसा इल्म यानी इतना इल्म, और इतना इल्म यानी इतना इल्म बोला आपने बोला यानी इतना इल्म, यानी इतना इल्म जितना रसूलुल्लाह को है, ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा यानी इतना इल्म, ऐसा इल्म यानी इतना इल्म जैसा रसूलुल्लाह को है, बोला ना आपने। ये बात पीछे खत्म हो चुकी है हुजूर से भाई। अरे यार तस्बीह तो उसी से हो रही ना, अब आगे तस्बीह तो वही दे रहा हूँ ना, यानी बात तस्बीह तो इतना इल्म, ऐसा इल्म, इतना इल्म। आपने कहा यानी इतना इल्म, यानी इतना इल्म। हाँ, तो कितना इल्म जितना रसूलुल्लाह को है, इतना ज़ैद अमर को भी है। हर किस गलत है, बिल्कुल हर किस गलत। आपने कहा ना इतना इल्म, अभी तो कहा आपने, आप कह रहे हैं इतना, आप अभी कहा आपने कि इतना इल्म, यही तो आप लोग आप कह रहे हैं इतना इल्म, आप कह रहे हैं ना इतना इल्म। अरे तो खुली हुई बोली है, खुली हुई गुस्ताखी है। इस खुली हुई गुस्ताखी को मुसलमान यूँ समझे, जितने सामईन है वो यूँ समझे, मतलब समझ रहा हूँ। अरे समझ रहा हूँ। मुतलक किसे कहते हैं? अरे तुमने इतना बोला, 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 क्वांटिटी नापोगे, तुमने इतना बोला। अरे हाँ बिल्कुल, क्वांटिटी नापेंगे, इतना बोलोगे तो। क्यों आप हम गुमराह कर रहे हो? अरे यार क्यों गुमराह नहीं, गुमराह कर रहे हैं माशाल्लाह, ये तो खुली खुली बोली बोल रहा हो तुम और कह रहे गुमराह कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने खुली हुई बोली बोली और कहा कि इतना यानी करके इतना भी बता दिया, यानी करके इतना भी बता दिया, तो तुमने तस्बीह तो कर दी, तस्बीह तो दी रसूलुल्लाह के इल्म से। मैं कैसे बोलने दूंगा जब तुम मेरे आका की शान में गुस्ताखी करोगे? जब मेरे आका की शान में तुम गुस्ताखी करोगे तो मैं कैसे बोलने दूंगा तुमको? तुमने तस्बीह दी है, तुमने तस्बीह दी, तुमने तस्बीह क्यों दी? तुमने कहा इतना, अरे माशाल्लाह मुंह की खाए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं रसूलुल्लाह की हिमायत कर रहा हूँ, तू थानवी की हिमायत कर रहा है और कह रहा है मैंने मुंह की खाया। अरे मैंने हुजूर सरवरे कायनात की हिमायत करी है, तूने कहा इतना, तूने कहा इतना, तूने कहा इतना, तूने कहा इतना, कितना इल्म? जब इबारत हमारी है तो वजाहत भी तो हमारी होगी ना। तो वजाहत तो रसूलुल्लाह के लिए इतना इल्म मानता है जितना ज़ैद व अम्र को है, तो जितना ज़ैद व अम्र का उतना रसूलुल्लाह को मानता है। अंदर ये अबे रसूलुल्लाह को उतना इल्म मानेगा जितना ज़ैद व अम्र का है। अबे रसूलुल्लाह को उतना इल्म मानेगा जितना ज़ैद व अम्र का है। इबारत मौलाना थानवी साहब की है, ये इबारत मौलाना। अरे ये इबारत तो थानवी ने कब बोला ये बात, वो बता। चल थानवी की है ना, तो थानवी ने कब बोला ये, वो बता। मौलाना तो थानवी वजाहत करे ना, तो तू वजाहत कैसे करेगा? किलो तुम मानते हो तो बस्तुल बनान की इबारत जो वहाँ थानवी साहब की है उसको मानते हो। अबे मुंह में तू पहले इस पर बात कर यार, तू पहले इस पर बात कर, तू पहले नहीं भाग मत, भाग मत कभी नहीं, भाग मत कभी, भाग मत नहीं कर सकते, नहीं भाग मत, नहीं भाग मत, देख भाग मत, जाए मुझसे बात भाग मत बेटा, भाग मत। अब ये अब भाग रहा है, तो जवाब नहीं दे रहा है, तो जवाब नहीं भाग रहे हैं, इसको समझ भाग रहा है, तो भाग गया, भाग मत, भाग मत, कबूल भाग मत, भाग मत, भाग मत। मैं बताता हूँ ना कैसे समझाया तूने इतना कहा, तूने कहा ठीक है बता कि ऐसा इल्म गैब को इतना कहा तूने, इतना इल्म गैब। अरे पढ़ना तू इबारत पढ़ के वाज़े कर, दलील से वाज़े। तूने इतना कहा कि नहीं, तूने इतना कहा कि नहीं, बता। तुझे क्या एतराज हो रहा है, तो वाज़े कर, तुझे क्या एतराज हो रहा है? अरे वाह यार, तूने इतना कहा, तू बात कर, तेरे से बात नहीं करूंगा मैं। अच्छा ठीक है, मुझे ये बता, क्या तू ये अच्छा ठीक है, क्या ठीक है, गैब का इल्म सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना इल्म है इतना किसी को नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना इल्म है इतना किसी को नहीं है। तो बात ही नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
किसी को भी नहीं है। मुतलक जितना इल्म मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना किसी को भी नहीं है। और तूने ये कहा कि इतना इल्म, ऐसा को इतना कहा तूने, ऐसा यानी इतना। पढ़ पहले, चल इबारत पढ़। तूने कहा हाँ मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, आपको सुनना पढ़ने देना है, तूने बोला पढ़ूं, पढ़ने देना कि ऐसा इल्म तो नबी पढ़ने तो दे। बात कहाँ पूरी हो गई, बात कहाँ पूरी हो गई, बात कहाँ पूरी हो गई कि बाज़ इल्म गैब जो है दीगर इंसानों को है या नहीं है। बाज़ उलूम गैबिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना है उतना किसी को है नहीं। तो तूने कहा ना कि इतना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितना इल्म तो किसी को नहीं है, लेकिन तो तूने अभी यही तो कहा कि यानी ऐसा यानी इतना, ऐसा यानी इतना, ऐसा यानी इतना। ये यार जाहिल कौन है, वो तो दुनिया जान रही है। मैं हुजूर सरवरे कायनात की हिमायत कर रहा हूँ कि थानवी की हिमायत कर रहा है। जाहिल कौन है दुनिया जानेगी, मैं रसूलुल्लाह के बारे में बोल रहा हूँ। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान कर रहा हूँ, तो थानवी की हिमायत कर रहा है। पता लगेगा कि कौन मुसलमान है। बिल्कुल हम हक की हिमायत, बिल्कुल 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 पता लगेगा कि कौन मुसलमान है। तो मैं तू थानवी की हिमायत कर रहा है, तू कह रहा है कि ऐसा का माना इतना है, ऐसा इतना तूने कहा, ऐसा को इतना कहा ना तूने, तो सुन तो ले, सुनने सुना तो है नहीं तूने। तू लुगात का हवाला भाग गया, तू भाग, लुगात मत भाग, तू यही रहे, तू यही रहे, कहीं मत भाग। तू फंस गया, तू कहीं मत भाग, अरे तू लुगात का हवाला मत दे, यही बैठ, ये खुद तू फंस गया, तू लुगात का तू फंस गया। तू जवाब सुन मेरे से, तू फंस गया। क्या सुनूं? तू हवाला दे, चल तू जवाब सुन, तू जवाब सुन, हवाला दे दे मेरे को, तू जवाब सुन मेरे से, हवाला, तू जवाब सुन। हाँ सुना, बोलूं? हाँ खामोश सुन। थानवी ने लिखा है, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा है ना, कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब, और बाज अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है। फिर उसने लिखा कि ऐसा इल्म गैब, और तूने कहा ऐसा मतलब इतना, ऐसा यानी इतना, तूने कहा ऐसा यानी इतना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तफसीर है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब मिला है उसकी कोई खासियत नहीं है। इतना इल्म गैब तो ज़्यादा अम्र, बल्कि हर सभी उम्मतों को हासिल है। तू ये कह रहा है इतना इल्म गैब रसूलुल्लाह का जितना है। हाँ बात पूरी, हाँ बात पूरी हो गई। इतना इल्म गैब तूने कहा, चुप तो करोगे अब सामईन? अरे तो यार मेरी पूरी बात तो सुन लिया, अगर बड़ करना शुरू कर देता होती है उसमें लिखा है कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तखसीस है, यानी क्यों नहीं तखसीस है? मेरे आका की तखसीस है। मेरे आका को जो इल्म गैब दिया गया है वो उसकी तखसीस है। कुरान के इल्म गैब पे फतवे पड़ रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो फिर तखसीस क्यों नहीं है? थानवी क्यों कह रहा है तखसीस नहीं है? थानवी क्यों कह रहा है तखसीस नहीं है? मुतलक बाज़ उलूम गैबिया मुराद है। फिर उसके बाद मुतलक नहीं, तूने बोला ऐसा, और मैंने ऐसा को तस्दीक कर रहा था, तूने कहा इतना तो क्लियर कर दिया, तूने तो क्लियर कर दिया इतना बोल करके जाओगे, लेकिन कभी ऐसा यानी इतना बोल दिया, मर जाओगे। अबे तुम मर जाओगे, जिंदगी भर साबित नहीं कर पाओगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम थानवी की हिमायत करते हो रसूलुल्लाह के मुकाबले में, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ करके थानवी की हिमायत करते हो। अरे यार तुम लोगों को लानत कितनी होगी, सोचो कि तुम रसूलुल्लाह सरवरे कायनात का कलमा पढ़ते हो और हिमायत थानवी की करते हो। अबे तुम्हें शर्म नहीं आती? बेहया बेगैर को, अबे खाते रसूलुल्लाह का हो, उनके सदके में दुनिया में जिंदगी जी रहे हो और थानवी की हिमायत कर रहे हो। अबे थानवी तुमको जन्नत में नहीं ले जाएगा, रसूलुल्लाह जन्नत में ले जाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी शफाअत करेंगे, हमारी शफाअत करेंगे, और तुम लोग थानवी के चक्कर में पड़े हुए, वो तो जहन्नम में जाएगा ही जाएगा, तुमको भी जहन्नम में लेकर के जाएगा। मर्दूदो उसकी बोली खुली हुई बोली है, लेकिन ये खुली हुई बोली तेरी समझ में नहीं आ रही है, और तूने तो खुद ऐसा को इतना कह दिया क्लियर, और इसके बाद में खामोश बैठा हुआ है मर्दूद। क्या बड़ा रहा है, कुत्तों के जैसा भौंक रहा है, आला नस्ल का। ये देखो अब्दुल शैतान फिर आ गया, सुअर का बच्चा फिर बोला, शैतान फिर आ गया, अब्दुल शैतान फिर आ गया। अरे तो सुअर का बच्चे को भूख नहीं मिल रहा, लग रहा खाने के लिए। सुअर का बच्चा बार बार भूख के मारे तड़प रहा है, ये बता। सुअर का बच्चा बार बार बोल रहा है। अरे राहिल भाई वो बहुत देर हो गई है, असल में गंगोई इधर बातचीत चल रही है ना गंगोई से। अरे सड़ी हुई, लेकिन बाबूदा इतनी शायरी की आपने बजाई है, इनकी कसम खुदा की मजा आ गया आज।
है ना। आज कसम खुदा की ऐसा शैतान, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। खुद को अपने ये वो नानोत्वी तड़प रहा है असल में इतनी देर से, बहुत देर से, क्योंकि क्या हुआ कि गंगोई इतनी देर से बातों में लगा हुआ है। नानोत्वी तड़प रहा है कि मतलब मेरी तरफ ध्यान तो नहीं दे रहा है। अशफाक रजा ने खुद अपने आप को शैतान साबित किया। अल्लाह अकबर। सब रिकॉर्ड है, किसने किसको शैतान कहा, किसने शैतान को सलाम करा, किसने शैतान की तारीफ की, सब रिकॉर्ड है। अरे राहिल भाई राहिल भाई मेरी बात सुनिए, आप खामोश रहिए। असल में क्या है, थोड़ी देर नानोत्वी को बोलने दीजिए। अच्छा क्योंकि गंगोई अब खामोश हो गया। आप तो सर आंखों पे हजरत। हाँ तो थोड़ी देर नानोत्वी को बोलने दीजिए। हाँ नानोत्वी बोलो तुम, जब तक कि गंगोई क्या कर रहे हो बताओ। रजा ने जो उठाकर चल, गंगोई क्या कर रहे हो वो बताओ। गंगोई क्या कर रहे हो वो बताओ। गंगोई क्या कर रहे हो बताओ। गंगोई क्या कर रहे हो वो बताओ। अच्छा तुम वही कर रहे हो क्या अभी? अहमद राहिल भाई अभी जी, ओ राहिल भाई जी मैं बता रहा हूँ कि जैसे औरत के सामने मर्द बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, ऐसे गंगोई नानोत्वी के सामने एकदम खामोश हो गया है। भाग गया, नानोत्वी बोलती जा रही है। भाग गया, भाग गया क्या? भाग गया। जज़ाकल्लाह। हजरत मजा आ गया, बहुत कायदे से ठुकाई हुई है, इसकी हर लफ्ज पे ठुकाई हुई है माशाल्लाह। बहुत उम्दा हजरत, दिल खुश हो गया हजरत। आज कल ये अपलोड होगी हजरत इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। हजरत हमें रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, शायद हमारे पास ना हुई हो। हाँ देख लेता हूँ, देखता हूँ। ठीक है ठीक है हजरत, अब आप आराम करिए। अस्सलाम वालेकुम।